السلام علیکم ریڈرز، میرے یوٹیوب چینل اردو ناول کلیکشن پر خوش آمدید۔ اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو کر لیجئے اس کو سبسکرائب، اور اگر آپ کو اچھی لگے ہماری یہ ویڈیو تو اس کو لائک بھی کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں آ کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ناول کی طرف، جس کا نام ہے سحر ہونے کو ہے، اور اس کی رائٹر ہے راشدہ رفعت۔ گھر میں عجیب ہڑ بونگ مچی تھی۔ وہ کنپٹیاں دباتی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بلائی پھر رہی تھی، مگر کہیں بھی پرسکون گوشہ نہ پا کر وحشت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اور اوپر بھابھی کا پورشن عموماً پرسکون ہوتا تھا، مگر آج وہاں بھی مہمان براجمان تھے۔ شدید سر درد، بھوک سے نڈال وجود اور ذہن میں کلبلاتی سوچیں اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ "ارے تم کیوں بدروحوں کی طرح بھٹک رہی ہو؟" تاثیر نے اسے مسلسل ادھر ادھر چکر کاٹتے دیکھا تو پوچھ بیٹھا، اور وہ جو مناسب الفاظ میں اپنے چکرانے کی وجہ بتانے ہی لگی تھی کہ توفیق بھائی نے تاثیر کو پکار لیا۔ "یار، یہ کراکری والوں کا بندہ آیا ہے، تمہاری بھابھی کہہ رہی ہے کہ سامان بھی کچھ کم ہے، ذرا ان سے پوچھ کر بتاؤ کیا کمی پیشی ہے۔" تاثیر سر ہلاتے ہوئے بھابھی کو ڈھونڈنے نکلا۔ وہ برآمدے میں بچھے تخت پر کپڑوں کا ڈھیر ایک طرف کرتے آپ بیٹھی، تخت کے پاس ہی آئرن سٹینڈ پر توحید کی شرٹ پھیلی ہوئی تھی۔ غالباً استری کے دوران اسے کوئی کام یاد آیا تھا، اور تخت پر دھرے ڈھیر سارے کپڑے ابھی پریس ہونا باقی تھے۔ "بھابھی کہاں ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟" اندر سے بیرا نے چلا کر پوچھا۔ "شاید اوپر گئی ہیں، بنٹی کو نہلانے جانے۔" "کہاں سے؟" جواب موصول ہوا۔ "ارے یہ بنٹی تو یہ رہا، جاؤ بنٹی اوپر سے ماما کو بلا کر لاؤ۔" بیرا نے 3 سالہ بنٹی کو اوپر دوڑایا اور پھر دوبارہ الماری میں سر گھسا کر کچھ ڈھونڈنا ڈھانڈنا شروع کر دیا۔ ذرا دیر بعد کانپتی کانپتی بھابھی نیچے آئی تھی۔ "ہاں کیا ہوا بیرا؟" انہوں نے کمرے میں جھانک کر پوچھا۔ "ابھی آپ کو تاثیر ڈھونڈ رہا تھا۔" "لوئی توبہ ہے بھئی، اوپر تاثیر ہی سے بات کر رہی تھی۔" بھابھی پھولی سانسوں کو نارمل کیے بغیر دوبارہ جینے کی جانب بڑھی۔ "تو تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ چلو اوپر میرے کمرے میں آؤ، ذرا دیر کو لیٹ جاؤ، پھر تو رات تک کمر سیدھی کرنے کی فرصت نہیں ملے گی۔" جاتے جاتی بھابھی نے کپڑوں کے ڈھیر پر نظر ڈالی تو سمٹائی انزا پر بھی نظر پڑی تھی۔ "آپ کے کمرے میں قدسیہ چچی کی بہن اور بہنوئی کھانا کھا رہے ہیں۔" اسے بتانا چاہا، مگر یہاں جواب سننے کی فرصت کسے تھی؟ بھابھی سیڑھیاں چڑھ چکی تھی۔ "فارغ بیٹھی ہو، یہ نہیں ہوا کہ کپڑے ہی پریس کر دوں؟" توحید جانے کہاں سے نمودار ہوا تو استری آن کر کے کپڑے پریس کرنے شروع کر دیے، اور چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ "کیا اچھا بھئی، سوری نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے یہ سب۔ آخر آج کی تقریب کیا وقت ہوا؟" توحید اس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ "شاید 5 یا پھر 5:15، زیادہ سے زیادہ 6 بجے ہوں گے، مگر اس سے زیادہ نہیں۔" توحید نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالنے کا تکلف کیے بغیر جواب دیا۔ "میری شرٹ دیکھی تم نے؟ کل رات 3 گھنٹوں کی خجل خواری کے بعد خریدی ہے۔ کتنا زبردست کلر ہے نا؟" وہ احتیاط سے اپنی شرٹ پر استری پھیر رہا تھا۔ "3 گھنٹے؟ ہاں 3 گھنٹے ہی تو رہ گئے ہیں۔" وہ بڑبڑائی۔ "مجھ سے کچھ کہا؟" "نہیں، تم سے کیا کہنا ہے۔" اس نے یک ہوتے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے تھے۔ "واہ کیا زبردست مہندی کا رنگ چڑھا ہے، سسرال میں خوب چاہی جاؤ گی۔" قدسیہ چچی کی بڑی بہن کھانے کی ٹرے اٹھائے اوپر سے نیچے اتری تو ذرا سی دیر کو اس کے پاس رک کر اس کی مہندی پر بھی تبصرہ کیا۔ اس نے ان کی بات پر دھیان دیے بغیر ٹرے کو غور سے دیکھا، پھر پلیٹ میں بریانی بچی تھی۔ "دکھائیں آنٹی، ٹرے میں رکھ آتی ہوں۔" اس نے اٹھ کر ہاتھ پاؤں میں چپلیں ڈالی۔ "ارے نہیں بھئی، تم سے کیوں کام کرواتی اچھی لگوں گی کیا؟" وہ سر جھٹک کر ہنستے ہوئے باورچی خانے کی جانب چل پڑی۔ باورچی خانے میں جانے اور واپس آنے میں انہیں زیادہ وقت نہیں لگا۔ ان کے باہر نکلتی وہ چپکے سے باورچی خانے میں جا گھسی۔ سامنے ہی ٹرے میں پلیٹ اور پلیٹ میں ٹھنڈی بریانی پڑی تھی۔ اللہ جانے کس پلیٹ میں سے قدسیہ چچی کی بہن نے کھایا تھا، یا اس کے شوہر نے۔ اس نے چمچ ایک طرف رکھ کر ہاتھ سے چاول کھانا شروع کر دیے۔ اس نے آخری بار کھانا کب کھایا تھا اس کے لیے ذہن پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ پچھلی شام تاثیر برگر لایا تھا، ذرائع مروت آدھا برگر اسے بھی عنایت کر دیا۔ آخر اگلے روز اس کا رتبہ ان سب سے بلند ہونے والا تھا۔ ہنستے کھیلتے سب سے گپیں لگاتے کیا سہانی شام گزری تھی۔ پھر رات کے کھانے کا وقت ہوا تو بیرا اسے مہندی لگانے کے لیے بھابھی کے کمرے میں لے آئی۔ "مجھے بھوک لگ رہی ہے بیرا۔" وہ منمنائی۔ "فوت نہیں ہو جاؤ گے اگر کھانے میں 2 گھنٹے کی دیر ہو جائے گی؟" بیرا نے اسے جھڑک دیا۔ چھوٹی ہونے کے باوجود وہ انزا سے ٹھیک ٹھاک روب جماتی تھی۔ واقعی 1-2 گھنٹے کی تاخیر سے اسے کیا فرق پڑنا تھا؟ فوت تو وہ اب بھی نہ ہوئی تھی جب کھانا کھائے 24 گھنٹے ہو چکے تھے۔ کاش مرنا کسی کے اختیار میں ہوتا، اس نے سوچا، پھر فوراً ہی جلیلی تصور میں اپنا کفن میں لپٹا وجود آیا تھا۔ "ارے اب تو یہ مہندی لگی ہے، اسے اتاروں کب؟" وہ 2 گھنٹے کی ارق ریزی کرنے کے بعد جب بیرا نے جھکی ہوئی اکڑی کمر سیدھی کرنی چاہی تو اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ جواب میں بیرا نے اسے ایسی ہی نظروں سے گھورا جیسے کہ اسے توقع تھی۔ "اچھا، میں کون سا ابھی دھونے جا رہی ہوں۔" اس نے فوراً مدافعانہ انداز اختیار کیا۔ "بیرا کون سی آ گئی؟ بے فکر رہو، ابھی کھانا گرم کر کے لاتی ہوں، خود ہی
खुद भी खाऊंगी, नवाले बनाकर तुम्हारे मुंह में ठूसूंगी, मगर खबरदार जो महंगी मेहंदी की तरफ मैली निगाहों से देखा। अभी से धोने की कतई जरूरत नहीं है, पहले अच्छी तरह खुश्क होने दो, फिर लौंग की भाप देनी है। बीरा हदायत देती चली गई और वो शराफत से उठकर बैठकर मेहंदी मुकम्मल सूखने का इंतजार करने लगी। बीरा शायद गई तो खाना गर्म करने ही थी, मगर दरमियान में उसे अम्मी अब्बू के कमरे में जाकर उनकी गर्मा गर्म बहस को ख़त्म करवाने के लिए खुद भी बहस में कूदना पड़ा। ओफ मम्मी, आप ही खामोश हो जाए, घर मेहमानों से भरा पड़ा है और आप लोग बच्चों की तरह बहस में लगे हुए हैं। आखिर मसला क्या है? उसने जजलाते हुए दरियाफ्त किया। 1000 रुपए दिए थे शौकत आपा की सौकिया की शादी में, वॉल क्लॉक अलग, मगर तुम्हारे अब्बा मान ही नहीं रहे। 1000 नहीं, पूरे 500 थे। डायरी में एक हिसाब किताब तुमने लिखा था या मैंने? 500 थे, एक जनाना सूट और वॉल क्लॉक। अब्बू ने अपनी बात में मुसरते, हाँ देखो, जनाना सूट तो मुझे भूल गया, 1000 रुपए थे, 500 का सूट और 6 साल पहले की बात। अब तो वैसा सूट 1000-1200 से कम तक नहीं आएगा। साथ 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 वॉल क्लॉक भी था। अम्मी चहक कर बोलने लगी, 1000 नहीं थे नेकबग, 500 रुपए थे। 500? अबू फिर सानिया से बोले, 1000 ही थे जी। आप कह रहे थे कि 500 दे देते हैं, मगर मैंने इस वक्त आपकी मुखालफत करते हुए कहा था, करीबी रिश्तेदार है, 500 देते हुए अच्छे लगे कि क्या? गोया तुम्हें चैन ना इस वक्त था ना अब। देने देती 500 रुपये तो आज ये खड़ाक तो ना होता। अबू को भी जलाल आ गया। बस मान गए ना, 500 नहीं दिए थे, 1000 ही दिए थे। अम्मी को उनके एतराफ़ से ये गोना सुकून महसूस हुआ। फतेहमंदी के जज्बे से शिकार होके बीरा को देखा, जो दोनों हाथों में सर पकड़े बैठी थी। अच्छा ठीक है, 1000 ही थी, फिर मसला क्या है? अम्मी वो जीचुई, मसला ये है कि आज इस लिफाफे में मरियल से 500 रुपये का नोट डालकर दे दिया है, दे गई शौकत आपा, और साथ ही घटिया सा टाइम पीस। अम्मी ने लिफाफा उसे थमाते हुए बताया। तो अब अम्मी किस बात को लेकर बैठ गई यहाँ? वैसे भी ये भी सिर्फ अंजा का निकाह हो रहा है, कोई रुखसी तो नहीं, बाकी कमी पेशी वो शादी पर पूरी कर देंगी। तो ये भी खूब कई 1000 बीमारियों की पोटली है। शौकत आपा रुखसी तक जिएंगी तो कमी पेशी पूरे करेंगी ना। अम्मी चहक कर बोली, देखा देखा अपनी माँ को कैसे खुदाई दावे कर रही है। अब्बू की रह के उम्मीद भड़क उठी थी। आखिर शौकत आपा उनकी दूर पार की सही पर थी तो बहन ना। बीरा झटके से उठकर कमरे से बाहर निकली। सामने ही तासीर जा रहा था, हाथ में कई शॉपिंग बैग थे, गालबन खरीदारी करके लौटा था। तासीर, बात सुनो, उसने फौरन जा पकड़ा। हाँ कहो। वो फौरन रुका। अरसे बाद तो बीरा ने यूं मुखातिब किया था, वरना जब से दोनों की मंगनी हुई थी बीरा ने उसे मुखातिब करना ही तर्क कर दिया। तो तुमने ईद वाले जो मुझे 1000 रुपये ईदी देना चाहिए थी, मगर 500 अपने पास रखकर बाकी 500 वापस कर दिए थे, याद है ना? ईद के 2 महीने बाद रात के इस पहर और इस हंगामे में उसे रोक कर पूछ रही थी। ताज़ीर हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगा। और मैंने तुम्हें जवाब में कहा ना, ठीक है बीरा बीबी, मगर याद रखना ये 500 रुपये उधार है मेरी तरफ। तसीर को तासीर को पूरा वाक़या जज़ियात के साथ याद आया तो हंसी होठों पर बिखर गई। कितनी खूबसूरत लग रही थी वीरा इस रोज़। तो फिर लौटाओ मेरा उधार। वो बिला झिझक मुखातिब हुई। तासीर को उसकी ज़हनी हालत पर शुबा होने लगा। क्यों नहीं है क्या? इसकी खामोशी से बीरा ने नतीजा अख़ज़ किया। अरे नहीं है, क्यों नहीं? निकालो मेरा वॉलेट। उस दोनों हाथों में ढेर सारे शॉपिस की मौजूदगी के बायस वो वॉलेट नहीं निकाल सका। बीरा ने बिला तकल्लुफ़ वॉलेट निकाला, खोला, 500 का नोट निकाला और वॉलेट दोबारा उसकी जेब में ठूस दिया। थैंक यू सर, दरअसल मुझे फौरी ज़रूरत थी। मेरे पैसे अंदर अलमारी में रखे थे और कमरे में बहुत से मेहमान बैठे, अंदर जाते अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सुबह लौटा दूंगी तुम्हें। तो कहकर रुकी नहीं थी। तासीर पीछे से पुकारता ही रह गया। कमरे में दाखिल होने से पहले अबीरा ने चुपके से मुट्ठी में दबे लिफाफे में दूसरा मड़ियल सा 500 का नोट भी खिसका दिया। कमाल करती है अम्मी आप, 1000 रुपये है लिफाफे में, आपने इतनी देर से हंगामा कर रखा है। वो नाराजगी से कहती हुई अंदर गई और दोनों नोट अम्मी की हथेली पर रख दी। वो हक्का बक्का दोनों नोटों को देखती रही। ये अब्बू आपको बाहर तौफीक भाई बुला रहे हैं। अब्बू की जुबान यकीनन कुछ कहने को मचल रही थी, मगर बीरा ने उन्हें बाहर ले आई। देखा कितना बेबुनियाद फसाद खड़ा कर रही थी तुम्हारी अम्मी। फ़ख्र उनके अंग अंग से झलक रहा था। मैं भी कहूँ, इतनी थड़ोली कैसे होगी? शौकत आपा इतने बड़े जमींदार घराने की बहू है, बेटे की तनख्वाह 40,000, मियाँ का बिजनेस। अबू प्लीज़, नोट एक ही था, दूसरा मैंने डाला था। वो कहकर किचन में चली गई। खाना गर्म करके उसने भाभी के कमरे का रुख किया, मगर गाँव तक से टेक लाए। वो जाने कब की सो चुकी थी। चलो अच्छा है, कह रही थी मैं सर में दर्द है, कुछ देर सोएगी तो ठीक हो जाएगी। बेरा उस पर कम्बल डालकर बाहर चली है और कुछ देर आराम करने के बाद अंजा की आंख खुली तो रात के 2 बज रहे थे। भाभी अपनी और बंटी के साथ बेड पर सो रही थी। सोफे पे कमाल भाई कराटे मारे थे। उफ तौबा, एकदम शर्मिंदगी नहीं आ गया ना? धीरे से उठकर उसने भाभी और बंटी पर कम्बल डाल दिया, फिर दबे पाँव कमरे से बाहर आ गई। सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई। नीचे हुक्का आलम था। गालबन सब घर वाले अब थक हार के घोड़े बेचकर सो रहे थे। तो कुर्सियाँ चची के कमरे की लाइट जल रही थी, वो इसलिए कि वो लाइट जलाकर सोती थी। धीमी मुस्कान चेहरे पर सजाए उसे सहन में वॉश बेसिन पर खड़े होकर रगड़ रगड़ के मेहंदी धोई। क्या खूबसूरत रंग चढ़ा था। कितनी देर वो महबूत होकर हथेलियाँ तकती रही। पता नहीं मुर्सा इस वक्त क्या कर रहे होंगे। मुर्सा का ख्याल आते ही वो
शर्मगीन मुस्कुराहट होठों पे बिखर गई। खाला कहती थी कि मुर्तज़ा गुस्से का बहुत तेज़ है और उन्होंने अंजा को उसके के धीमे मिजाज की वजह से ही मुंतखब किया है। सिर्फ वही है जो मुर्तज़ा को संभाल सकती है। लो ये भी लतीफ़ा है, मुर्तज़ा भाई को संभालेंगी अंजा जी। तौहीद ने खाला की बात का लुत्फ़ उठाया था। क्यों, कैसे कैसे नहीं संभालेगी, मैं 101 नुस्खे बताऊंगी इसे मुर्तज़ा को फ़ौरन मुट्ठी में करने के। मुर्तज़ा को फ़ौरन मुट्ठी में करने के। भाभी मुस्कुराई थी। ले साइज़ देखा है आपने मुर्तज़ा भाई का? अंजा की मुट्ठी में कहाँ समाएंगे वो? बेरा ने शरारत से उसे चिढ़ा। वो भी सर झुकाकर मुस्कुरा दी। खाला ने बाज़ाब्ता रिश्ता मांगा। अम्मी तो झट राज़ी हो गई, मगर अब्बू को पता चला तो अम्मी पर बिगड़ने लगे। कोई ज़रूरत नहीं, आपा को साफ इनकार कर दो। मैं इस शख्स के घर अपनी बेटी नहीं ब्याह सकता। इस शख्स से मुराद एहतशाम खालू थे और अब्बू के फर्स्ट कज़न थे। इसके बावजूद दोनों के ताल्लुकात हमेशा कशीदा ही रहते थे। कशीदगी की वजह तबीयतों में पाया जाने वाला तज़ाद हरगिज़ नहीं था, क्योंकि दोनों का मिजाज बिल्कुल एक जैसा था। बहुत जल्द गुस्से में आ जाना, सिर्फ अपनी हाकमियत जताना और अपनी ही मनवाना। खाला बहुत धीमे मिजाज की खातून थी। उन्होंने हर मामले में खालू को के सामने सरेंडर किया। नतीजतन ज़िंदगी कुछ सुकून से गुजरी, मगर यहाँ अम्मी ने भी दबनाना सीखा तो ज़िंदगी बहुत हंगामा खेज रही। दोनों ख़ानदानों के दरमियान ताल्लुकात की नोयत भी ऐसी ही रही। साल 6 महीने ताल्लुकात ठीक रहते, फिर कुछ छोटी सी बात बेज़र सा हंसी मजाक बहुत बड़े झगड़े में तब्दील हो जाता। दोनों घरानों के बीच आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता। किसी ईद त्योहार पर ताल्लुकात बहाल होते और चंद महीनों की आर्जी फायरबंदी के बाद अब्बू खालू की जानिब से कोई गोला फिर दाग दिया जाता। इसके बाद जब खाला ने इंजा का रिश्ता मांगा तो सब हैरान रह गए, पर अब्बू ने इस पर प्रपोजल के लिए 2 मिनट के लिए भी गौर करना मुनासिब ना समझा था। महज ज़िद में इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रहे हैं आप? वो कुफरान नेमत नहीं तो और क्या है? अम्मी का उसमें मामूल अब्बू पर ताव आया। खैर अम्मी की नाराज़गी या खफकी ने तो अब्बू को केक का क्या लेना देने लगा था, लेकिन जब हर तरफ से यही बात सुनने को मिली तो वो भी सोचने पर मजबूर हो गए। खासकर जब कुछ चची ने समझाया। वो बेवा भाविज तो ना सिर्फ बहुत इज्जत करते थे बल्कि बात भी मानते थे। अकील भाई ज़रा ठंडे दिलो दिमाग से सोचे, क्या कमी है मुर्तज़ा में? देखा वाला बच्चा है, शरीफ है, खूबसूरत है, फिर ख़ानदान का सबसे तालीम याफ्ता लड़का, इतनी अच्छी नौकरी, और सबसे बड़ी बात यह कि इतने मान और चाहत से वो लोग रिश्ता मांग रहे हैं। बेशक एहतशाम भाई का मिजाज आपसे मेल नहीं खाता, मगर इतना तो आप जानने के कि निंजा बीरा को उन्होंने हमेशा अपनी औलाद की तरह ही पाला है। खुद के चच की बातों में वजन आया था या फिर उन्हें अपनी बात मनवाने का ढंग आता था? वो सोच में पड़ गए। बेटी का बाप बनकर सोचा सोचा मुर्तज़ा हर लिहाज से अंजा के लिए मुनासिब मालूम हुआ। फिर अल्लाह का नाम लेकर फ़रत आपा को हाँ कर दी। और हाँ ये भी आपको बताए देती हूँ कि बीरा मेरे तासीर की दुल्हन बनेगी। उन्होंने मौका पाकर ये बात भी अब्बू के कान में डाल दी। और यूँ एक सुहानी शाम को खाला ने उसकी अंगूठी में मुर्तज़ा के नाम की अंगूठी डाल दी और साथ ही बीरा और तासीर की मंगनी भी हो गई। ज़िंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था, मगर चंद माह बाद मुर्तज़ा ने बाहर जाने का शोशा छोड़ दिया। उसकी कंपनी वाले किसी ट्रेनिंग कोर्स पर भेज रहे थे। मगरिब ममालिक की आज़ाद फ़िज़ा में ये कितने सुनाए जाने वाले वाक़या ज़हन में घूमने लगे। शायद अम्मी अब्बू को ये खदशात सता रहे थे। खाला से बात की तो उनके पास सारी फ़िक्रों का नादिर हल मौजूद था। ठीक है, निकाह कर लेते हैं। अम्मी अब्बू को क्या एतराज़ होना था? बाहमी रज़ामंदी से निकाह की तारीख तय होगी। हफ्ता पहले मुर्तज़ा निकाह से हफ्ता भर पहले मुर्तज़ा घर आया। वैसे उसकी तासीर से खूब गाड़ी छिनती थी। हफ्ते में एक चक्कर ज़रूर लगा लेता था, मगर मंगनी के बाद उसने आना बहुत कम कर दिया था। अब अचानक चला आया। अंजा सेन में थी। तासीर के साथ ही उसे अंदर आता देखा तो झटपट किचन में जा घुसी। कुछ चाय पानी का इंतज़ाम करो, मुर्तज़ा आया है। अम्मी हिदायत देती है बावर्ची खाने में चली है। चाय का करूँ या पानी का? ये सवाल ज़हन ही में उस वक्त आया जब मम्मी बाहर चली गई मदद के लिए। झाँक कर बाहर देखा, बरामदे में तख्त पर गाँव तकिए से टेक लगाया मुर्तज़ा बैठा था। साथ ही तासीर था। उसे जागता देखकर तासीर उठकर आया। चाय बनाऊं या कोल्ड ड्रिंक? उसने राय ली। वो मुस्कुराया। चाय कोल्ड ड्रिंक ठीक रहेगी। तासीर के मशवरे पर सर हिलाते हुए फ्रिज में सर घुसाया। है ये तो पूरी 1.5 लीटर की बोतल कौन पी गया? हैरानी से सर बाहर निकल। तुम ठहरो, मैं भी लेकर आता हूँ, साथ समोसे भी लेता आऊँगा। आज मुझसे बहुत दिन बाद आया, तासीर कहते हुए चला गया। वो सिंक में पड़े जूठे बर्तन धोने लगी। बाहर जाने का मतलब ये था कि मुर्तज़ा के सामने से गुजरना पड़ेगा। इस चीज़ की हिम्मत तो खुद में ना पाती थी। कहने को वो खाला जाता, मगर बेतकल्लुफ़ी ना होने के बराबर घर की लड़कों से मुर्तज़ा की खूब बनती थी। बीरा से भी खासी दुआसलाम थी, मगर उसे देखने के साथ ही सारी बेतकल्लुफ़ी और खुशमिजाजी भाप बनकर उठ जाती। तो नपे तुले अंदाज में सलाम का जवाब देने के अलावा उसकी याददाश्त में कोई ऐसा लम्हा मुकीद न था जब मुर्तज़ा ने उससे कोई फालतू बात की हो। इसलिए जब खाला ने रिश्ता मांगा तो 3 दिन तक तो वो गोया सख्ती की कैफियत में रही। चौथे दिन जब उसके हवात कुछ बहाल हुए तो तौहीद ने यह कहकर समाअत पर बम फोड़ा कि रिश्ता पुरज़ा की ख्वाहिश पर तय हुआ है। अब तौहीद की सी आईडी तो ख़ानदान में मुस्तनद थी, सो यकीन करना पड़ा। मगर यकीन करने का
نقصان یہ ہوا کہ اگلے 3 دن تک پھر سکتے کی سی کیفیت طاری رہی۔ آخر جب تک مرزا کے نام کی انگوٹھی انگلی میں پہنائی گئی تو اسے اپنے اور اس کے درمیان رشتے کا یقین آیا۔ محبت پر یقین اب بھی متزلزل تھا، اور آج یہ مرزا صاحب جانے کہاں سے آ نکلے تھے۔ منگنی کے بعد تو جیسے یہ علاقہ غیر بن گیا تھا، اب نکاح سے پہلے آ گئے ہیں۔ شاید تاثیر سے کوئی کام ہو، اسی سوچوں میں غلطاں وہ برتن دھوتی رہی، اتنے میں پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پلیز تاثیر 1 منٹ رکنا، میں بوتل گلاسوں میں ڈالوں، تم باہر ہی لے جاؤ۔ مرزا بھائی کے سامنے جاتے ہوئے میرا سانس رکنے لگتا ہے، اس نے دیچکی مانتے سے مخاطب کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں تاثیر نہیں مرزا ہوں، دوسری بات یہ کہ اب میرے نام کے ساتھ بھائی کا تم چھلا ہٹا دو، تیسری بات یہ کہ میرے سامنے آنے سے تمہارا سانس کیوں رکنے لگتا ہے۔ دیکچی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پہ گری تھی، خاصا زور کا دھماکہ ہوا تھا۔ آپ مرزا بھائی السلام علیکم۔ آواز کچھ بحال ہوئے تو مری مری آواز میں سلام کے جواب پر بڑی سنجیدگی سے سوال کا جواب موصول ہوا، کیسی ہو؟ کہیں اس کے کان دھوکہ تو نہیں کھا رہے تھے؟ اس نے غور سے مرزا کو دیکھا۔ سنا نہیں، پوچھ رہا ہوں کیسی ہو؟ وہ خاموشی پر جھجلا گیا، ٹیکو بکلا کر اتنی تیزی میں جواب دیا، تمہیں معلوم ہے ہفتے بھر بعد ہمارا نکاح ہو رہا ہے؟ ذرا توقف کے بعد پوچھا، آپ یہی اطلاع دینے آئے ہیں کیا؟ وہ پوچھنا تو چاہ رہی تھی پر خاموش رہی۔ جب منگنی ہوئی تھی تو یہ طے ہوا تھا کہ 1.5 سال کے بعد شادی ہوگی، یہ 4 ماہ بعد ہی وعدہ خلافی کیوں؟ وہ لب پیچھے اس سے جواب طلبی کر رہا تھا جو وہ خود کسی گنتی میں شمار نہ ہوتی تھی، صرف اس ڈر سے کہ کہیں میں باہر کی آزاد فضاؤں میں بہک نہ جاؤں، مجھے اس بندھن میں باندھنا جا رہا ہے، اتنا بے اعتبار ہوں تمہارے لیے۔ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، خود بخود اس کا سر نفی میں ہل گیا۔ پھر خالہ خالو کو سمجھا ابھی نکاح کی بات نہ کریں، 1.5 سال کی بات ہے، میں ٹریننگ مکمل کر کے آ جاؤں گا، پھر شادی کے متعلق سوچوں گا۔ میری بات کون سنے گا؟ وہ بنائے، دیکھو میں نے امی سے بات کی تھی، مگر ان پر خالہ خالو کا دباؤ ہے، تم اپنے والدین کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھا سکتی ہو، انہیں یقین دلاؤ کہ تمہیں مجھ پر اعتبار ہے۔ سر بل کی تو بات ہے، ورنہ میں یکسوئی سے اپنا کام مکمل نہیں کر پاؤں گا، میں خواہ کا ڈسٹرب ہوں گا اس فضول سے شوشے سے۔ وہ سخت بیزار نظر آ رہا تھا۔ کرو گی خالہ خالو سے بات؟ اس نے پھر پوچھا۔ جی، وہ خود اس کی گردن اس بات میں ہل گئی۔ گڈ۔ وہ مطمئن سا ہو کر باہر نکل گیا، تب بھی تاثیر بوتل لیے اندر آیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں میں امڑتے آنسو دیکھ کر پریشان ہوا۔ کچھ نہیں، ہاتھ جل گیا۔ اس نے بہانہ تراشا تھا۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ برنور لگاؤ۔ اسے ڈپٹتے ہوئے خود ہی بوتل گلاسوں میں ڈال کر باہر چلا گیا۔ کتنے ناخوش لگ رہے ہیں اس رشتے سے۔ اور توحید کہتا ہے کہ ان کی مرضی سے رشتہ طے ہوا ہے۔ بیرا آئی یونیورسٹی سے تو اس کے ذریعے امی کو کہلوا دوں گی، کوئی ضرورت نہیں میرا نکاح کرنے کی۔ آنسو پوچھتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا، مگر بیرا کی طبیعت خرابی کی وجہ سے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنا نہ جا سکا۔ اگلا روز خالہ کے ناپ کا جوڑا اور پسند کا رنگ پوچھنے چلی آئی۔ میرا تو خیال ہے سرخ جوڑا لوں گی، مگر مرتضیٰ کہنے لگا، امی سرخ رنگ تو رخصی پر ہی اچھا لگتا ہے، نکاح کا کوئی ہلکا سا رنگ لے لے۔ گلابی رنگ کیسا رہے گا بیٹی؟ خالہ نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں ہاں، بہت اچھا لگے گا۔ اور آپا تم بھی تو مرتضیٰ کا ناپ دو، وحید کہہ رہا تھا نکاح کا جوڑا ہم مرتضیٰ کے لیے خود خریدیں گے۔ پینٹ کوٹ ہی پہنے گا نا مرتضیٰ؟ امی خالہ سے مرتضیٰ کی پسند پوچھ رہی تھی۔ وہ بادل خواستہ اس ہی پر اس نکاح پر راضی ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے کھسک آئی۔ مجھے لگتا ہے مرتضیٰ نے بھی سب نکاح کے لیے حامی بھر لی ہے۔ جبھی تو خالہ ہر بات پہ اس کا حوالہ دے رہی ہیں۔ اس کے سینے پہ دھرا بوجھ ہٹ گیا۔ بس ویسے ہی بعض مردوں کو شوق ہوتا ہے اپنی بیویوں کو انڈر پریشر رکھنے کا۔ مرتضیٰ بھی ایسے ہی لگتے ہیں، اس روز کیسا پھوں پھاں کرتے آئے تھے اور اب نکاح کا جوڑا بھی خود پسند کر رہے ہیں۔ وہ ہلکی پھلکی ہو گئی، پھر تو تیاری میں گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ رب سفید ہتھیلیوں پر رچی سرخ مہندی دیکھ کر اسے یکدم ہی مرتضیٰ یاد آیا تھا۔ اس کے تصور سے ہی ڈیر و شرف نے آ گھیرا۔ ابھی کے بقول چٹ منگنی پٹ بیاہ والا محاورہ تو سنا تھا، مگر یہاں چٹ منگنی اور پٹ نکاح والا معاملہ درپیش تھا۔ اور یہ بیرا کی بچی مجھے بھوکا ہی سلانے کا پروگرام تھا اس کا۔ اف، کتنی زوروں کی بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے دبے پاؤں باورچی خانے کا رخ کیا۔ شکر ہے ہاٹ پاٹ میں روٹی رکھی تھی، سالن گرم کرنے کے لیے فریج سے ڈونگا نکالا ہی تھا کہ اس میں موبائل کی بیل بجی۔ رات کے سناٹے میں گھنٹی کی آواز سن کر دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ ڈونگا بھی ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے پتہ یہ تاثیر کا موبائل تھا۔ وہ اپنی عادت مطابق رات کے کھانے کے بعد چائے بنانے آیا تھا، شیلف پر موبائل بھول گیا تھا، گھنٹی بجی جا رہی۔ اس نے موبائل اٹھا کر اسکرین پر نام دیکھا اور ملکہ کا جگمگاتا نام دیکھ کر تیزی سے دھڑکتا دل ایک لمحے کے لیے خاموش سا ہو گیا۔ کیا کہوں؟ اس کا ذہن معاف ہو گیا اور پھر وہ بالکل غیر ارادی طور پر موبائل آن کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو پھنسی پھنسی آواز میں ہیلو کہا گیا۔ کون؟ دوسرے سے مستویٰ کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ یقیناً تاثیر کے علاوہ کسی کی آواز کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ تاثیر سو رہا ہے، موبائل یہاں کچن میں بھول گیا ہے، سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے بتایا تھا۔ انزا
اس نے اس کی بات دھیان دیے بغیر گویا کنفرم کرنا چاہے، وہ خاموش ہو گئی۔ اس خاموشی میں ہی اس بات کا تاثیر اپنے کمرے میں آپ صبح بات کر لیجیے گا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے قدر اعتماد سے جملہ ادا کیا، تاثیر سے تو میں بات کر ہی لوں گا، فی الحال تو مجھے آپ سے کچھ حساب میں بات کرنا ہے۔ وہ جھکتے ہوئے لہجے میں مخاطب ہوا، تم نے اپنی سی کر لی ہنزا بی بی؟ کیوں، کیا کیا ہے میں نے؟ وہ اس انداز پر خوفزدہ ہوئی۔ میں نے کہا تھا نا خانہ خلو کو سمجھاؤ۔ میری بات کو ہنسی میں اڑا دیا تم نے، اب نتائج خود بھگتنا۔ اس کا سرد لہجہ اس کی سماعتوں میں ٹھنڈک اتار آتا۔ کیا کریں گے آپ؟ کپکپاتے لبوں سے یہی جملہ برآمد ہوا۔ تمہیں یہی خوش فہمی تھی کہ میں مجبور ہوں، کچھ نہیں کر سکتا؟ تو یہ تمہیں کل ہی پتہ چلے گا میں کیا کر سکتا ہوں۔ ویسے اگر کہو تو ابھی بتا دوں کہ کل میں کیا کرنا جا رہا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہنزا نے اس کا جملہ مکمل ہونے کا انتظار کیے بار کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ہاتھ پاؤں بالکل بے جان ہو گئے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی موبائل دوبارہ بج اٹھا۔ اس نے خوفناک نگاہوں سے موبائل کو دیکھا، وہ جلدی سے آف کر کے واپس شیلف پر رکھا اور تیزی سے کچن کی لائٹ اور دروازہ بند کر کے باہر چلی آئی۔ پھر برآمدے کے ٹھنڈے ٹار فرش پر بیٹھ کے بے آواز رونا شروع کر دیا۔ مرزا یقیناً اس رشتے سے خوش نہیں تھا، جب بھی نکاح کی پابندی قبول نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر پھر اس نے اس رشتے پر حامی کیوں بھری؟ منگنی کے وقت ہی صاف انکار کر دیتا۔ اب جب دونوں خاندانوں کی رضامندی سے نکاح ہونے جا رہا ہے تو وہ انکار کے لیے اس کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانا چاہ رہا ہے۔ اب تو اس نے گویا صاف صاف دھمکی دے دی ہے۔ کیا کرے گا وہ کل؟ آنسو مسلسل آنکھوں سے گر رہے تھے اور ذہن اس کے فکرے میں گونج رہا تھا۔ سب گھر والے کتنے سکون سے سو رہے ہیں۔ اسے سر اٹھا کر پورے گھر پر نگاہ ڈالی اور یہ سوچ کر ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کیسے لطیف سے جذبے دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے، اور اب یوں برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر روتے ہوئے اتنا شدید خوف آیا کہ اٹھ کر اپنے اور ربیرہ کے مشترکہ کمرے میں گھس گئی۔ بیرہ کے اوپر سے ہلکا سا لفاف کھینچ کے اپنے اوپر ڈال لیا۔ ڈر کی شدت میں تو کمی آئی، مگر رونے کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اطمینان اس بات کا تھا کہ بیرہ ہرگز نہیں جاگے گی۔ وہ تو عام دنوں میں گھوڑے بیچ کر سوتی تھی، آج تو پھر پورے دن کی تھکاوٹ تھی۔ حالانکہ ایک بار اس کا جی چاہا کہ بیرہ کو اٹھا دے، مگر خود اس سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا۔ کیا فائدہ اس وقت بیرہ کو پریشان کا؟ اچھا ہے آج کی رات سکون سے سو جائے، کل پتہ نہیں۔ سوچ کر دماغ چل ہو گیا۔ آنسو بھی خوش ہو گئے، مگر نیند روٹی نہیں۔ فجر کی اذان تک وہ آنکھیں کھولے لیٹی رہی۔ پھر نماز پڑھ کے طبیعت کو کچھ اقرار آیا، پھر لیٹی تو پتہ ہی نہیں چلا اور نیند مہربان ہو گئی۔ اگلی صبح بیرہ کے اٹھانے پر بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ بالآخر 12 بجے بنٹی کے گلا پھاڑ کے رونے پر وہ جاگی تھی۔ بھابھی نے اسے کسی بیکار کی ضد پر دھپ رسید کی تھی۔ بنٹی نے گلا پھاڑ کر جو چلانا شروع کیا تو بھابھی کو مزید غصہ آیا۔ بیرہ اسے بھابھی سے بچانے اپنے کمرے میں لے آئی، وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ ہنزا نے مدی مدی آنکھیں کھول کر پہلے اسے پھر گھڑی کو دیکھا۔ جاؤ بنٹی پھوپھو کے پاس چھپ جاؤ جا کر، پھر مما کو نہیں ماریں گی۔ ہنزا نے لیٹے ہی بازو پھیلا دیے۔ بنٹی لپک کر اس کے پاس آیا۔ تمہاری آنکھیں کیوں سوج رہی ہیں؟ بیرہ نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ دیر تک سوئی ہوں نا، اور شاید فلو بھی ہو گیا ہے، سر بھاری ہو رہا ہے۔ اچھا میں چائے بھجواتی ہوں تمہارے لیے، اب ناشتہ تو کرو گی نا؟ کھانا تیار ہونے میں بھی آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ آدھا گھنٹہ گھسنا ہی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی آدھا گھنٹہ ہی رہتا ہے۔ مہمان کافی سارے آ گئے ہیں، دوپہر کے کھانے سے جلدی نپٹیں گے تبھی شام کو وقت پر تیار ہوں گے نا۔ بس اسی لیے مہمانوں کو ناشتہ بہت ہلکا پھلکا کروایا، اور میں اور بھابھی صبح سے کچن میں ہی لگے ہوئے ہیں، بیرہ بتا رہی تھی، اور وہ بغیر گردن ہلائے چپ چاپ سنتی رہی۔ اچھا مہندی تو دکھاؤ۔ جاتے جاتے دفتن بیرہ کو مہندی دیکھنے کا خیال آیا۔ اس نے بے دلی سے دونوں ہتھیلیاں آگے کر دی۔ واؤ کتنا پیارا رنگ چڑھا ہے، اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، شکر ہے میری محنت رائے گاہ تو نہیں گئی۔ بیرہ خوش ہو رہی تھی، جبکہ ہنزا بنا کچھ کہے سسکیاں بھرتے بنٹی کو چپ کرانے لگی۔ کچھ دیر بعد لوہی چائے کا کپ پکڑا گیا تھا۔ ہنزا پھوپھو چائے ابھی ایک سپ ہی لیا تھا کہ بنٹی نے فرمائش کر دی۔ وہ مسکرا دی۔ چائے کی شدید طلب کے باوجود عزیزت جان بھتیجے کی فرمائش کو بھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ گھونٹ کر کے بنٹی کو چائے پلانا شروع کی تو جس پر بنٹی نے ہاتھ اٹھا کر بس کہا، چائے بھی بس ہو چکی تھی۔ آخری گھونٹ بھر کے اس نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ گھر میں عجیب و غریب ماحول مچا ہوا تھا، جبکہ اس کے دل و دماغ میں برپا ہونے والا ہنگامہ بھی کم نہیں تھا۔ آج شام کو جانے کیا ہو رہا جاتا، کیا کرے گا مرتضیٰ؟ واحد سوچ جو ذہن تک رسائی حاصل کر پائی تھی وہ یہی تھی کہ مرتضیٰ شام کو نکاح سے انکار کر دے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سوچ کے کنپٹیاں دکھنے لگی تھی۔ یہ بیرہ کی بچی کچھ احساس ہی نہیں کہ میں نے کل دوپہر کے بعد سے اسے کچھ نہیں کھایا۔ گھڑی پر نگاہ ڈالی تو بیرہ پر بھی شدید غصہ آیا۔ بٹ سب مہمانوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا، کسی کو اس کا خیال تک نہیں آیا، حالانکہ سب کو پتا تھا کہ بھوک کی کتنی کچی ہے۔ اسے سب پر غصہ آیا اپنے تئیں۔ وہ سب سے ناراض ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی، پھر اس رات کی تقریب کی تیاری میں بری طرح مگن۔ آخر جب بھوک برداشت سے باہر نکلے تو بے خود ساختہ بھوک ہڑتال ختم کرتے ہوئے کچن میں چلی آئی۔ ٹھنڈی بریانی کے 3-4 نوالے لینے کے بعد ایک کپ چائے پینے کا ارادہ تھا۔ کیتلی میں پانی چڑھایا ہی تھا کہ کچیا چچی سامنے سے گزری۔ اے تم یہاں کچن میں کیا کر رہی ہو؟ چائے بنا رہی ہوں چچی، چلو میرے بچے آرام سے کمرے میں جا کر بیٹھو، میں ذرا تاثیر کی ٹائی ڈھونڈ لوں۔
छोड़ो, फिर तुम्हें चाय बना कर देती हूँ। हमेशा की शफीक मिजाज कुछ चच्ची को आज के दिन उसका यूं चूल्हे के पास खड़ा होना पसंद ना आया था। वो ठंडी सांस भरती हुई किचन से बाहर चली आई। मैं अगर सुबह बात से अब तक तजर्बों के बाद उसे 100% यकीन था कि चाहे उसके नसीब में नहीं है। अंजा, तुम अब सुकून से मेरे कमरे में बैठ जाओ, वहाँ अब कोई मेहमान नहीं है। मैंने खाला को फ़ोन कर दिया है, कम से कम जोड़ा और मेकअप का सामान तो भिजवा दे। बीरा तुम्हें तैयार करना शुरू कर दे, वरना बहुत देर हो जाएगी। भाभी ने नरमी से मुखातिब किया तो वो हाक में मर्ग मफाजात की अमली तफसीर बनी। भाभी के कमरे में आगे बुरी तरह से बिखरा हुआ भाभी का कमरा। उसने पहले कमरे को समेटा, फिर बेड पर नीम दराज होगी करने को, और कुछ नहीं था भी नहीं। नहीं, अभी तो नहीं, फिर जाने का क्या था भी नहीं, फिर जाने कैसे उसकी आँख लगी, फिर बीरा के झुंझोड़ने पर ही आँख खुली। तुम्हारा भी जवाब नहीं अंजा, आज भी यूँ घोड़े बेचकर सो रही हो। खाला वगैरह आ चुके हैं, तुम जल्दी से शावर ले लो। और फिर भाभी तुम्हारा सामान और जोड़ा भी लेकर अभी आते तुम्हारा जोड़ा सामान लेकर आते हैं। बीरा ने उसे कुछ सोचने और पूछने का मौका दिए बगैर बाथरूम में धकेला। और फिर जब नहा कर बाहर निकली तो बेड पर ढेर सारा सामान बिखरा हुआ था। नया खूबसूरत लहंगा, मेकअप का सामान, चूड़ियाँ, जेवर के डब्बे, फूलों के गजरे। बीरा हथेली पर लिपस्टिक के मुख्तलिफ शेड चेक कर रही थी। अब अब आ भी जाओ अंजा। उसने बेड पर अंजा को बैठने की जगह बनाई थी। मुर्जा भाई भी आए हैं क्या? उसने कदर झुकते हुए सवाल किया। कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो अंजा? बीरा ने उसे बोला, इसका मतलब है आए। उसने सुकून का सांस लिया। चंद लम्हों बाद ही तौफीक भाई और तस्वीर निकाह के रजिस्टर संभालते हुए आगे आ गए। कुछ चाची, अम्मी और भाभी भी हमरा थी। अम्मी की आंखें डबडबाई हुई थी। अम्मी पर नजर पड़ते ही उसका जब्त का बंधन भी टूट गया। पागल लड़की, अभी सिर्फ निकाह हो रहा है, रोना धोना रुखसी के लिए बचा रखो। तौफीक भाई थपथपाते हुए चले गए। कुछ चाची अम्मी को जबरदस्ती नीचे लेगी। खाला तो कह रही थी निकाह का जोड़ा हल्के रंग का लाएंगी, मगर देखो कितने गहरे रंग का लहंगा ले आए हैं। वैसे है बहुत खूबसूरत है ना अंजा? मेकअप करते वक्त बीरा की जुबान भी मुसलसल चल रही थी। ओह मेरे खुदा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता अंजा, तुम आज किस कदर खूबसूरत लग रही हो। मैंने आज तक 7-8 ढूल्हों को तैयार कर चुकी हूँ, मगर किसी पर इतना रूप नहीं चढ़ा। वो बहुत मोहब्बत और महबत से उसे देख रही थी। और देखो तो सही, लगता है खाला ने सारा जेवर अभी चढ़ा दिया, रुखसी के लिए कुछ बचा कर भी नहीं रखा। और अब उसके हाथ में जुड़ाव कंगन डाल रही थी। मेरा ख्याल है मैं भाभी को बुलाती हूँ, तुम्हें नीचे ले चले, फोटो सेशन में भी तो घंटा 1.5 घंटा लगेगा ना। बीरा चीज़ें समेटते हुए उठी थी। वैसे तुम इतनी हसीन लग रही हो, मुझे डर है कि मुर्तज़ा भाई तुम्हें देखकर रुखसी का शोशा ही ना छोड़ दे। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है फिर मैं नीचे नहीं जा रही। मुर्तज़ा भाई से तो हालचाल अच्छा ठीक है, फिर मैं नीचे जा रही हूँ। मुर्तज़ा भाई से तो हाल अहवाल पूछा हूँ। आज तो मैंने उनसे तगड़ा सा नेक भी लेना है। मेरा शौकी से कहते नीचे चली गई। मैं 5 मिनट बाद ही फूली हुई सांसों और तपतपाते चेहरे के साथ दोबारा आन मौजूद थी। ओह माय गॉड, तुम्हें पता है अंजा क्या होने जा रहा है? उसके मुंह से फिक्रा भी पूरी तरह अदा नहीं हुआ था कि अंजा का दिल धक से रह गया। उसने सवालिया निगाहें अबीरा के चेहरे पर गाड़ी। नीचे तुम्हारी फौरी रुखसी का मामला तय पा चुका है। अनबिलीवेबल, मेरी 5 मिनट पहले कही हुई बात सच साबित होगी। कितनी हैरानकुन बात है ना बीरा? हैरत के समंदर में गोता जानती, उसका दिल तो जैसे मुट्ठी में आ गया था। प्लीज़ बीरा, मजाक मत करो। उसने अपने यकमोते हाथों से बीरा का हाथ थामा और इसलिए में धड़ धड़ करती सीढ़ियाँ चढ़ते देखते ही लोग ऊपर आए। आपा, आपकी फरमाइश ने तो मेरे हाथ पाँव फैला दिए। मेरा यूं भी कोई कभी होता है? खाला उसे प्यार कर रही थी जब अम्मी रूहानची होकर उससे मुखातिब। ऐसी गलत फरमाइश भी नहीं की फरत मैंने, अब तो उनकी चीज़ है, जब मर्जी ले जाए। कोई हंसते हुए कह रहा था, और क्या, अब तो मेरी बेटी है अंजा, तुम्हारा कोई हक नहीं। खाला का चेहरा अंदरूनी खुशी से दमक रहा था, जबकि अंजा होले होले काम रही थी। फिर भी बिना किसी तैयारी के दुनिया क्या कहेगी आपा? अ, अम्मी अजीब शशोपंज में मुब्तला थी। कैसी तैयारी नहीं करती, हमें सिर्फ अंजा चाहिए। और मुर्जा तो जहेज़ का सबसे बड़ा मुखालिफ है। उसने तो पहले ही कह दिया था जहेज़ के नाम पर तिनका तक नहीं लूँगा। और अब तो खुद ब खुद मौका ही ऐसा बन गया, महीने 1.5 महीने तक इंजा के कागजात भी बन जाएंगे। मुर्जा कह रहा था, जब आधा खर्चा कंपनी उठा रही है तो फिर हम ऑफर से फ़ायदा क्यों ना उठाएं? और क्या आंटी, मुर्जा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो ये भी कह रही थी कि अपने पल्ले से हनीमून पर जाना पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा नारान तक जा सकता है। अब तो इंजा माशाल्लाह दुनिया घूमेगी। मुर्जा की फुप्पूजाद बहन साइमान भी अम्मी को समझा रही थी, फिर भी पहले से बात तय हो जाती तो हम खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेते। कसिया चच्ची की आवाज़ भी भराई हुई थी, जबकि वो फटी फटी निगाह नज़रों से सबको देख रही थी। समात तक सबके जुमले तो पहुंच रहे थे, मगर जहन उसका मफहूम समझने से कासिर था। बस मुस्ताह के कह गए अल्फाज जहन में गूंज रहे थे। तुम्हें यही खुश फहमी थी ना अंजा बीबी के, मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो तुम्हें कल पता चलेगा। मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा अच्छा, बस अब अगले अकील राजी हो गए हैं तो अब तुम भी हंसी खुशी से बेटी को विदा करो। किसी रिश्ते की खाला ने अम्मी को टोका था तो गोया अब्बू भी मान गए। सदी की सबसे हैरान कुन बात अबीरा ने उसके कान में घुसकर सरगोशी की। अच्छा चलो भाई, अपनी दुल्हन को नीचे ले आ, रस्में करते हैं, अभी तो वक्त लगेगा, पहले ही इतनी रात हो चुकी है। साइमा बाजी ने कहा था। बीरा और भाभी ने उसका लहंगा संभालते हुए नीचे में मदद की। उसकी आवाज़ बिल्कुल
हो चुके थे, किसी रोबोट की मानद वो उठी थी। फिर जब उसे स्टेज पर मुस्सा के पहलू में बिठाया गया तब भी उसके जज्बात में कोई रवायती हलचल ना मची। ज़हन माऊक था, अलबत्ता बाकी सब लोगों ने सूरत हाल को खासी खुशदिली से कबूल किया। बीरा खूब चहक रही थी, तासीर तो सभी ने उन्हें खूब रौनक लगाई, फिक्रेबाजी हो रही थी, मुस्सा को छेड़ा जा रहा था, कह के लग रहे थे। वो सर झुकाए अपने आप को यकीन दिलाने में मसरूफ थी कि जो कुछ हो रहा है वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। जाने कितनी देर तक रस्मों का सिलसिला जारी रहा, फिर आखिरकार रुखसी का गलगला उठा। कुर्सिया चाची ने चादर पहनाई, तौफीक भाई ने कुरान पाक थामा, किसने सर पे हाथ फेरा, कौन लिपट कर मिला उसे कुछ याद नहीं रहा। कैसी दोनों रस्म के तौर पर ही रोलो तो ईद ने सर पर हाथ फेरते शरारत से सुरगोशी की, उसकी गोद में चढ़ा बंटी उसकी जानिब हमक लगा। फिर जाने क्या हुआ, इतना अचानक उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। अम्मी, अब्बू, चची, भाभी, भाई, अबीरा, तासीर, तौहीद, बंटी सब हमेशा के लिए यही रहेंगे। चंद घंटे पहले तक उसके महमो गुमान में भी ना था कि इस घर से यूं उसका बोरिया बिस्तर से मिट जाएगा। मुंजमदा साथ पर कुछ बर्फ पिघली तो हिचकी बन गई। 10 मिनट की ड्राइविंग भी थी खाला के घर की, और 10 मिनट तक वो धुआंधार रोती रही। पिछली सीट पर खाला उसे खुद से चिमटाए बैठी ने मुसलसल तसल्ली दिलासे दे रही थी। घर पहुंचकर रस्मों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। खाला बहुत खुश थी, उनके तो पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। खालू भी खुश थे। हंजा के सर पर हाथ फेर कर उन्होंने ढेरों दुआएं दी थी, और फिर मुस्सा के कज़न उसे बेडरूम में ले आई। कुछ देर तक मुस्सा के नाम से छेड़छाड़ का सिलसिला जारी रहा। फिर खाला की मुदाखलत पड़ी। सब ने उसकी जान बख्शी, कदमों की चाप पर उसका झुका, सर मजीद झुक गया। दिल में वजूद सब खदशात नए सिरे से सर उठाने लगे। दिमाग अब कुछ कुछ काम करने लगा था। कहाँ निकाह से कतई इनकारी, और कहाँ खुद इतनी फौरी रुखसी। इंतकाम के सिवा कुछ कौन सा मुनासिब लफ्ज़ हो सकता है। मुझसे यकीन अपने माँ बाप मेरे वालिदैन के दुआ की वजह से निकाह के लिए राजी तो हो गया, मगर अब उन्होंने रुखसी का शोशा सिर्फ इसलिए छोड़ा है कि मुझे टीज़ कर सके। हो सकता है अपने किसी कोलीग में इंटरेस्टेड हो, या फिर यूनिवर्सिटी फेलो के इश्क में अभी तक गिरफ्तार हो। ज़ेन इन्हीं हदूद पर सोच रहा था, दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था। तुम जानती हो रंजा, आज मैं तुम्हें पाकर किस कदर खुश हूँ। अपनी समावतों के करीब मुर्सा की मध्यम लहजे पर उसने बेयकीनी से सर उठाकर उसे देखा था। तंज या मजाक, उसने मुर्सा की आंखों में खोजने की कोशिश की, मगर नाकामी हुई। आई एम सॉरी यार, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मुझे अंदाजा है कि तुम इस सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी, मगर ये मेरी मजबूरी थी। अगर निकाह से पहले ये तजवीज़ ज़ेर गौर आती तो शायद खाला खालू इसे दरख्वास्त इतना ही ना समझते। हाँ, निकाह के बाद मैं इस पोजीशन में था कि इनसे ये सब बनवा लेता। मुस्कुराते हुए बोला, कंपनी की तरफ से ये पैकेज चंद रोज़ पहले ही आया है। ट्रेनिंग पर जाने वालों को कपल वीज़ा ऑफर किया गया था। आधे से ज़्यादा खर्चा कंपनी उठाएगी। अब इतने शॉर्ट नोटिस पर कपल इस तरीके से ही बन सकता था। उसके लहजे में शरारत थी। 5 दिन बाद मेरी फ़्लाइट है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने में तुम्हारे सारे कागजात मुकम्मल हो जाएंगे। मैंने तस्वीर को सारा प्रोसेस समझा दिया। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं था ना, बस इसीलिए मॉनिटरिंग के लिए तुम्हें भी साथ ले जाने का फैसला किया है। मुर्सा के कहने पर उसने तरदीद करने के लिए सर उठाया था, और शरारती नज़रों से उसे ही तक रहा था, सर झुका लिया। वैसे मुझे अंदाज़ा था कि तुम्हारी ये सब बिल्कुल गैर मुतवक्का होगा। फिर जब अचानक इत्तेफाक से तहसीन ने तो फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ सुनी तो सोचा चलो बहुत पहले ना सही, चंद घंटे पहले ही तुम्हें एतमाद में ले लूँ। ये तो आई तमीज़ जो मैं मान रहा हूँ कि शायद कल ही तुम्हें बता देता, मगर क्या करूँ, तुम्हारी आवाज़ सुनते ही तबीयत मचल गई। वैसे बायदा में मेरी आवाज़ सुनने के साथ ही तुम्हारी घिग्गी क्यों बन जाती है। मैंने तुम्हें मजाक में धमकाया और तुम सचमुच डर गई। यार, कम से कम मेरी पूरी बात तो सुन लेती। वो फिर घंटे तक ट्राई करता रहा, मगर तुमने मोबाइल ही ऑफ कर दिया। मुर्सा ने सफाई दी, क्या आज पूरी रात ही मैं ही बोलता रहूँगा, तुम भी तो कुछ बोलो, चाहे शिकवा ही कर लो। वो मुस्कुराते हुए मुखातिब था। अंजा ने जरा इसे नजर उठाकर उसे देखा, कुछ के कह लो कि लब खोले जाए, मगर तो बस तज़ब्ज़ुब के आसार चेहरे पर नमूदार हुए थे। कुछ कहना है, कुछ कहे बिना दोबारा सर झुका लिया। बोलो क्या बात है, मुझसे उसकी ठोड़ी ऊपर करते कहा, मुझे भूख लग रही है। कुछ देर तक चुप रहने के बाद झिझकते हुए बोली, और ये जवाब मुर्सा के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का था। तभी तो वो अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपा ना पाया। आप हंसे मत, मैंने कल दोपहर के बाद से कुछ नहीं खाया। वो कजन नाराज़ हुई, भूख हड़ताल पर थी। वो इसके अंदाज पर जी भर के महफूज हुआ था। जी नहीं, बता आपके फ़ोन ने भूख उड़ा दी। कल से अभी तक मैं रोती रही हूँ। वो शिकवा किए बगैर ना रह सकी। ओह, फिर तो वाकई कसूर मेरा है। तलाफी के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुस्कुराते हुए उठा था, तुम जल्दी से चेंज कर लो, करके जेवर वगैरह उतार दो। वैसे तो ना अभी मैंने तुम्हारा ये रूप जी भर कर देखा, ना तुम्हें सराहा। तुम आज नाकाबिल यकीन हद तक खूबसूरत लग रही है हंजा। किसी ने बताया तुम्हें? हाँ, बीरा ने बताया था, उस सादगी से बोली, मगर मुझसा के मुस्कुराने पर पजल हो गई। मुर्तज़ा मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। उसने जल्दी से ज़ेवरात से छुटकारा पाकर कपड़े बदले, मेकअप साफ़ किया कर ही रही थी कि मुर्तज़ा दोबारा अंदर आ गया। चलो जल्दी से चादर पहनो, हम बाहर जा रहे हैं। बाहर कहाँ? वो जी भर के हैरान हुई। तुम्हें डिनर करवाने, और कहाँ? लेकिन सब लोग सो चुके हैं। तुम चुपके से आ जाओ, दरवाज़ा बंद करके जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस तुम जल्दी से उठो। और ये अब
मूर्छा ने उसे सोफे पर पड़ी चादर उठाकर थमाई, लेकिन उसे चादर ओढ़ी मगर बाहर जा और बीबी बाहर जाते हुए हिचकिचा रही थी। देखो कोई लेकिन वेकिन नहीं, देखो किचन में खाने को ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन मुझे तो अंडा भी उबालना नहीं आता। मैं खुद कुछ कर लेती हूँ। वो अपनी भूख के इस तरह इज़हार पर अब शर्मिंदा हो रही थी। एक दिन की, बल्कि यूँ कहना चाहिए पहली रात की दुल्हन से किचन में काम करवाते अच्छा लगूंगा क्या? और तुम घबरा क्यों रही? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मूसा ने हाथ आगे बढ़ाया। उसने बहुत झिझकते उसका हाथ थामा था। घर वाले थक हार कर खूब आके खौफ खरगोश के मजे लूट रहे थे। सब कमरों के दरवाजे बंद थे। बहुत आहिस्ता रवि से मूसा की मदद में उसने वसी और से नबूर किया। पोर्च में आकर मूसा ने बाइक निकाली। हालांकि आज मौसम कदरे मुतदिल था, मगर मूसा के पीछे बाइक पर बैठते हुए उसे सही मायनों में कभी चढ़ी हुई थी। यूँ नहीं लग रहा अंजा कि तो जैसे हम चोरी छुपे रात की तारीकी में घर से फरार हो रहे हैं। मेन रोड पर बाइक दौड़ाते मुर्जा हंसते हुए कह रहा था और वो खामोश रही। मेरा ख्याल है हम दुनिया के पहले मियाँ बीवी हैं जो शादी की पहली रात बेडरूम की बजाय फास्ट फूड रेस्टोरेंट में बैठे हैं। मुर्जा उसे नज़दीक तरीन फास्ट फूड रेस्टोरेंट में ले आया था। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, मेहंदी किससे लगवाई थी? मुर्जा ने उसका हाथ थाम को पूछा। तो जो बातें बेडरूम में करने वाली थी वो मुर्जा को यूँ सूझ रही थी। वहाँ तो सारा वक्त वजाहतें देने में गुजारा दिया। और कितना खूबसूरत रूप था मुर्सा का। वो मुस्कुराती आंखों लू देता लहजा, यूं एक गोशे में आमने सामने बैठकर उसकी बोलती आंखों का सामना करना अंजा के लिए कुछ ऐसा भी आसान ना था। हम पहले ही बहुत मशगूल लग रहे हैं, अब आप प्लीज़ मुझे यूं पजल ना करो। जो खुश खफीफ सा होकर अपना हाथ छुड़ाया था। मुर्सा हंस पड़ा। वैसे ये ज़्यादती है, चंद दिन बाद मैं जा रहा हूँ, इतनी राहत तो मिलनी चाहिए कि 4 दिन मैं अपनी बीवी के साथ रह सकूँ। वलीमा की तकरीब हो चुकी थी, तो सब घर वाले रस्म के मुताबिक इंजा को साथ ले जा रहे थे। आपको पहले ही बहुत रियायतें मिल चुकी हैं। मुर्तज़ा भाई यूँ बैठे बैठे बिठाए मेरी बहन को रुखसत करवा लिया। मैं तो सुबह सोकर उठी तो यूँ लग रहा था जैसे सब ख्वाब हो। वीरा ने जैसे अंजा के दिल की बात कह दी। वाकई लग तो इससे भी यही रहा था जैसे ये को ख्वाब होंगे। चंद घंटों में ही किसी की बेतहाशा चाहत के इज़हार ने उसे जैसे मगरूर सा कर दिया। तो वो अभी मुस्कुराते हुए वीरा और मुस्सा की नोकझोंक सुन रही थी। अच्छा चलो मेरी बात छोड़ो, अंजा से पूछ लो अगर ये जाना चाहती है तो एक क्या भले 2 दिन के लिए ले जाओ। मुर्तज़ा ने रुख उसकी तरफ मोड़ा। ले जी, एक ही दिन में इतना यकीन हो गया आपको? अंजा हमारे बजाय आपकी फ़ेवर करेगी। वीरा ने उसे चिढ़ाया। बोलो अंजा, चल रही हो ना हमारे साथ? वो बहुत यकीन और मान से उसने अंजा का बाजू थामा था। उसने गड़बड़ाकर मुर्तज़ा को देखा जो मुस्कुराती निगाहों से उसे ही तक रहा था। मैं क्या बताऊँ, इनसे पूछो। उसके जवाब पर मुर्तज़ा ने बेसाख्ता कहका लगाया तो वीरा ने फ़ौरन अंजा को घोरा। इतने में अम्मी और खाला भी कमरे में आ गए थे। मैं तो कह रही नुगत कि आज अंजा को यहीं रहने दो, कल सुबह अंजा और मुझसा दोनों आ जाएंगे। खाला ने वही बात की। नहीं आपा, घर मेहमानों से भरा पड़ा है, कम से कम रस्म तो पूरी कर लेने थे, फिर बेशक सुबह ही मुर्सा को लेने भेज दीजिएगा। अम्मी ने कहा तो खाला ने मजीद इसरार ना किया। उन्होंने नजर बचा के मुर्सा को देखा। उसने हंसते हुए गर्दन के इशारे से हाँ कर दी। तुम एक दिन में ही इतनी खूबसूरत हो गई हो, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। बिया उससे मुखातिब थी। यकीन तो उससे भी नहीं आ रहा था। एक दिन पहले जिस घर को छोड़ते हुए उसका पूरा वजूद हिचकियों से लरज रहा था, आज वही घर वही कमरा कितना पराया पराया ऐसा लग रहा था। तुम खुश हो अंजा? सब कुछ इतना अचानक हो गया, तुम्हारे दिलो दिमाग ने इतनी जल्दी सब कबूल कर लिया? ये बीरा थी उसकी हमदम हमराज। उसने मुस्कुराहट कर इस बात में सारी लाया। तो ईद कहता है ये रिश्ता मुर्तज़ा भाई की पसंद से तय हुआ था, लेकिन मुझे कभी वहीद की बात पर यकीन नहीं आया था। इस रिश्ते से मुतालिक मेरे जहन में जितने खदशात और वहम थे, मैं कभी ढंग से खुशी ना हो पाई। मगर तौहीद सच, वाकई सच कहता था बीरा। वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोली। बीरा ने एक नज़र उठा के एक नज़र बहन के चेहरे पर डाली। कितनी मुख्तलिफ लग रही थी आज अंजा। उसका खिलता हुआ पुरएतमाद लहजा यकीनन मोहब्बतों का एजाज़ था। उसने दिल में उसकी खुशियों की देर पा होने की दुआ की थी। वैसे अंजा अभी भी फिर भी बताओ तो सही, मुर्तज़ा भाई को अचानक गुस्से की क्या सूझी? अंजा के जहन में कब से बुलबुलाता हुआ सवाल पूछ ही डाला। अंजा मुस्कुरा दी। यही सवाल तो उसने भी मुर्तज़ा से किया था। कहाँ तो आपने कहा तक से इनकारी थे, कैसे दम ने गाया था इस वक्त मेरे किचन में आके? हाँ, इस वक्त तक जब तुम्हारा मेरा हाँ, उस वक्त तक जब तुम्हारा मेरा साथ जाना कन्फर्म नहीं था। मैं वाकई तुम्हें निकाह के बंधन में बात कर नहीं जाना चाहता था। सच्ची बात तो ये है कि अब्बू जी और खालू जी की ज़िंदगी भर जितने मिसाली ताल्लुकात रहे हैं, इनको मद्देनज़र रखा जाए तो महज निकाह को काफ़ी नहीं समझता था। लेकिन निकाह के बाद क्या होना था? मुर्तज़ा का खदशा उसे बिल्कुल बेबुनियाद लगा। तुम्हें नहीं पता अंजा, ये जो हमारे आस-पास रिश्तेदार पाए जाते हैं कितने ख़तरनाक हैं। अब्बू और खालू के दरमियान आज तक जितने भी छोटे-बड़े तनाज़े रूनुमा हुए हैं, इन्हीं के मुश्तरका रिश्तेदारों की मुख़लिसाना कोशिशों की वजह से हुए हैं। कम से कम मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था। अगर कोई फड्डा-शड्डा हो जाता तो हम दोनों मुफ़्त में ही मारे जाते, रुख़सती ही मशकूक हो जाती। बस इसलिए मैंने पक्का इंतज़ाम कर लिया। मुर्तज़ा की बात पर उसे इस वक्त भी हँसी आई थी और अब
याद करके नए सिरे से हंसी आ गई। तो तुम्हें क्या हो गया अंदर, मैं तुमसे इतनी मशहूर संजीदा बातें कर रही हूँ, तुम बिला वजह हंसे जा रही हो। बीरा ने चिढ़ कर कहा था। अच्छा अच्छा नाराज तो मत बोलो, मैं सुन रही हूँ। अंदर ने वो मुश्किल मुस्कुराहट छुपाई। नहीं बस अब मैं सोने जा रही, बाकी बातें सुबह होंगी। बीरा ने करवट बदली। अंजा ने एक नजर उस पर डाली और दोबारा ख्यालों में खो गई। धीमी सी मुस्कान फिर से लबों पर सज गई थी। भाई साफ बात है कुलसूम भाभी, हमारा तो जो कुछ भी है इंजा और बीरा का ही है। आप भले से मुझसे इनकार करे या कोई, हमारी जो हमारी गुंजाइश है उसके मुताबिक बेटी को देंगे। अब मौका गुजर गया, कपड़े लत्ते बर्तन फर्नीचर ना सही, मगर मैंने रंजा के बुरे सोचा है कि कैश दे देंगे। अपना जेवर तो मैंने उस दिन चढ़ा दिया था, अपनी मर्जी से नए डिज़ाइन बनवाएगी। डिज़ाइन रूम में इस वक्त रिश्तेदार खवातीन से भरा पड़ा था। बीरा सबको चाय सर्व कर दी। हाँ भाई, कोई यूँ खाली हाथ बेटी को रुखसत थोड़ी करता है। वो तो जवान का मुतालबा था, तुमने पूरा कर दिया। आसमा आंटी ने जोरदार तरीके से अम्मी की तायद की। किसका मुतालबा पूरा हो गया? अबू भी अंदर आ गए। एहतशाम भाई का मुतालबा, और किसका? सच्ची बात है भैया कि दुनिया दबने वालों को ही दबाती है। आजकल नेकी का तो जमाना नहीं, अगर उनकी बात ना मानते हो तो भी बुरे बनते हैं, मान ली तब भी। आसमा आंटी ने बात दूरी छोड़कर चाय का बड़ा घूंट पड़ा। क्या बात है आसमा भाभी, पूरी बात बताएं। छोड़े भैया, किसी की जुबान थोड़ी पकड़ी जाती है। बस हमारी दुआ है कि बच्ची अपने घर में खुश रहे। बीरा ने तिखी निगाह आसमा आंटी पर डाली। गुफ्तगू जिस रुख पर मुड़ चुकी थी, बीरा के आसपास कहीं गतरे की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। हाँ तो और क्या, आसमा सही कह रही। वैसे भी मियाँ हम ठहरे लड़की वाले, ज़माने के दस्तूर के मुताबिक गर्दन तो नीचे ही रखनी पड़ेगी। मुमानी तायरा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। कहीं कैसी इनकसारी से उन्हें खुद को लड़की वालों में शुमार कर लिया था। बीरा की छठी इसने से बाहर जाने से रोका। खाली ट्रे हाथ में लिए गुस्सा चच्ची की उसी के हत्थे पर चढ़ गई। फिर भी पता तो चले क्या बात है। जरूर एहतशाम ने कुछ कहा होगा। अब्बू ने पूरी यकीन अंदाज में कहा। अरे छोड़ो वकील, मेरे मुंह से बात नहीं निकली नहीं हो तुमने पकड़ी। भाई बुरे तो हम ही बनेंगे, यहाँ की वहाँ लगाई। हालांकि भैया हमें इंतजाम की बात सुनकर बहुत आया, मगर क्या करते, अपनी बेटी का मामला था। चुपचाप सुनते ही टोक भी दे सकते थे। आसमा आंटी ने आखिर मौजू के मुताबिक पिच तैयार कर ही लिया। अब स्ट्रोक खेलने की बारी अब्बू की थी। हस्ब तवक्का वो तैश में आगे बताया। आसमा भाभी क्या कहा है उसने? वैसे तो जी मैं उसकी फितरत से वाकिफ था, फिर भी पता तो चले। अरे भाई, क्या कहने वालों की कोई जुबान पकड़ सकता है पेशाम की तबीयत का? तुम्हें अंदाजा ही कह रहे थे। हमने ये सोचकर रुखसी का मुतालबा किया था कि बच्चे की जिद है, वो लोग कहाँ मानेंगे। मगर जनाब वो तो शायद इसी इंतजार में थे, शायद बेटी इतनी भारी पड़ी थी। फौरन बात मान ली। आसमा आंटी ने आखिर बिल्ली थैले से बाहर निकाल ली। ईमान से कहे आसमा भाई, क्या एहतशाम भाई ने ये कहा है? अम्मी को धचका लगा। तो हमें कैसे यकीन आएगा अपने बहनोई की फितरत का? अभी तक अंदाजा नहीं हुआ। हर बार मुझे मुर्ज़ इल्ज़ाम ठहराती हो। इसीलिए मैं इंजा का रिश्ता नहीं दे रहा था। जानता हूँ तो उसकी फितरत को, मगर तुमने कर ली, तुमने अपनी मनमानी। अब बताओ, बांध दिए ना मेरे हाथ, क्या कर सकता हूँ मैं? बेटी तो दे दी, सारी जिंदगी इस शख्स के सामने सर झुका कर रहना पड़ेगा। अबू मेहमानों का जहाज किए बगैर अम्मी पर दौड़े। छोड़े वकील भाई, गुस्से में क्यों आते हैं? मजाक में कह दिया होगा श्याम भाई ने। अब दिल पर मत ले। कुत्सिया चच्ची जो हक्का पक्का सारी सूरत हाल को बेकरता देख रही थी, उन्होंने फौरन मुदाखलत की। मगर कुत्सिया मजाक भी तो एक हद तक अच्छा लगता है। भाई मैं तो कहूंगी कि वकील का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। तारा मानिए फौरन अब्बू की हिमायत की थी। कुछ देर तक अब्बू मतलब विजय चाय की पहली हाथों में थामे गोया गुस्सा जब्त करने की कोशिश करते, फिर अम्मी को कह रहे नजर डालते अपने कमरे से बाहर निकल गए। समझाओ फरत इसे, अब जो हुआ सो हुआ, ज्यादा गुस्से में मत है। लड़की साथ का मामला है। और आंटी ने मसनूई तफक्कुर लिए लब कुशाई की थी। वीरा का बस नहीं चल रहा था इन खवातीन को कैसे मंजर से गायब कर दे। अम्मी फक चेहरे के साथ बैठी थी। कुर्सिया चच्ची अलग परेशान थी। बीरा उठकर कमरे से बाहर आई। सामने से तस्वीर आ रहा था। बीरा के चेहरे पर यकीनन कुछ ऐसा था कि वो ठटक कर रुक गया। क्या हुआ भैया? वो कुछ देर तक खाली नजरों से उसे देखती रही। जहन बिल्कुल गायब हाजिर था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो मुतफक्कर हुआ। कुछ ठीक नहीं है तहसील, बहुत कुछ गलत होने जा रहा है। वो आहिस्ता से बोली। छठी इस आने वाले तूफान से कबल इस वक्त मुतला कर रही थी। बीरा में बात बात सुनना इतने में अंजा ने कमरे से बाहर झांका। उसे पुकारा तो दुआ करो तहसीर सब ठीक हो जाए। आहिस्ता से कहते हुए कमरे में चली गई। तहसीर ने नासमझी से उसे देखा था। कैसी लग रही मैं बीरा? फिरोजी कामदानी वाले सूट में अंजा थमक रही थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपना नाकदाना जायजा लेने में मसरूफ थी। मुझसे भाई तुम्हें अभी तक लेने नहीं आए? अब तक तो आ जाना चाहिए था। उसने घड़ी पर निगाह डालते हुए पूछा। हाँ खाला कह रही थी पुरसा का फ़ोन आया था, उन्हें ज़रूरी काम है, ऑफिस जाना पड़ गया। वो कह रहे थे कि मैं खाला से के साथ वापस आ जाऊँ, फिर इंशाल्लाह कल हम ज़रूर चक्कर लगाएंगे। अंजा ने तफसीली
जवाब दिया। बीरा चुप रही। नाराज मत हो बीरा, सच्ची कल हम ज़रूर आएँगे, बल्कि दोपहर का खाना यही खाएँगे। अनजान ने उसकी खामोशी से मतलब अख़ज़ करते हुए यकीन दहानी करवाई। बीरा इस बात में सर हिलाकर ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। मेरी बेटी इतनी गड़ी-पिटी नहीं है आपा, और ना ही ये समझे कि बेटी देखकर हमारे हाथ-पाँव बिल्कुल ही बंद गए हैं। मेरे ये सबसे कीमती चीज़ मेरी इज़्ज़त है। जब तक श्याम अपने कहे की माफ़ी नहीं माँगेगा, हंसा वहाँ नहीं जाएगी। वही है जिसका खदशा था। दरवाज़े की ओट में खड़ी बीरा का दिल जैसे रुक सा गया। पिछले आधे घंटे से कमरे में जा रही अम्मी अब्बू खाला की बातचीत का आखिरी नतीजा यही निकला। कैसी बातें करते हो वकील? एहतेशाम ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसकी आदत है हंसी मजाक उड़ाने की। बाखुदा उन्होंने जो भी बात कही उसका मतलब हरगिज ये नहीं निकलता। फर्क तुम ही समझाओ वकील को। खाला ने बेचारगी से बहन को मदद के लिए पुकारा। नहीं आपा, अंजा के अब्बू ठीक कह रहे हैं। जिन 4 लोगों में उन्होंने हमें जलील किया है, कम से कम उनके सामने ही उन्हें अंजा के अब्बू से माजरत करनी चाहिए। जिंदगी में पहली बार अम्मी ने अब्बू के किसी मौकफ की तायीद की थी। ऐसी बात है तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ तुम दोनों से। वो जैसे हार मानकर बोली। नहीं आपा, अब बात आपकी नहीं है, आप काबिल एहतराम है हमारे लिए। बात है शाम के रवैये की है। ऐसी घटिया बात करके उसने हमें हमारी नज़रों में हक़ीर कर दिया। खुदा गवाह है, सिर्फ आपकी बात का ईमान रखते हुए मैं अंजा को इस तरीके से रुखसी पर राज़ी हुआ था, मगर अब एहतशाम माफ़ी मांगेगा इसके बगैर बाद ही अंजा इस घर से रुखसत होगी, मगर इसके लिए हमें मोहलत चाहिए होगी। यानी शांत तरीके से हम बेटी विदा करेंगे, जो इसका हक है बनता है सब देंगे। अब्बू ने दो कुट अंदाज में कहा था। कैसी बातें कर रहे हो वकील? अपना नहीं तो बच्चों की खुशियों का ही ख्याल करो। जहेज का लालच यहाँ किसी को नहीं। अभी तक मैंने अपने बच्चों की खुशियों का सदका भी नहीं उतारा। जाने किस हासियत की नज़र लग गई है। काला बिल्कुल हांसी हो गए। तो तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अचानक पीछे से अंजा ने आकर पुकारा। दरवाजे कान लगाए। बीरा एकदम चौंकी थी। खाला अंदर ही है ना? मैं सलाम तो करूँ। उसने अंदर कदम बढ़ाए। बीरा ने रोकना चाहा, वो रुक ना पाई। अंदर खाला जी बेताबी से अपने साथ पाया। वो इंजा के लिए हैरान कुन था। ऊपर से अम्मी अब्बू के बेतासुर चेहरे, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई थी। खाला की आँखों में आँसू देखकर दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़का। देखो कि ज़िद मत करो, एक ज़रा-सी बात के लिए बच्चों की खुशियों को दाँव पर मत लगाओ। बात बिगड़ी तो बहुत बिगड़ जाएगी। ले जाने दो मुझे अंजा को अपने साथ। खाला ने एक बार फिर मिन्नत की। अंजा तुम जाओ अपने कमरे में। अम्मी ने पहले ही उसे मंज़र से गायब करना चाहा। हाँ बेटा, तुम जाओ कमरे में, हम आपस में ज़रूरी बात कर रहे हैं। अब्बू ने भी संजीदगी से उसे मुखातिब किया। वो कुछ ना समझते हुए बाहर निकली थी। क्या हुआ बीरा? सूखे लबों पर ज़ुबान फेरते उसने पूछा पूछा मसला है अंजा? सब ठीक हो जाएगा। बीरा उसका हाथ थामकर अपने कमरे तक ले गई थी। कितनी खामोशी थी घर में। वो बेड पर नीम दराज थी। उसे 3 दिन पहले की रौनक और हंगामा याद आया। उस रोज़ शोर शराबे से बहुत वहशत हो रही थी। आज घर में मुकम्मल सन्नाटा था, लेकिन वहशत पहले से सवा थी। सब चुप थे। कभी कभी कभार अब्बू की आवाज़ ही गूंजती थी। हरगिज़ नहीं से शाम की माफ़ी मांगे बगैर हंसा वहाँ जा ही नहीं सकती। एक कुछिया चची थी जो दबे लफ्ज़ों में अब्बू को सूरत हाल की संगीनी के बारे में बता सकती थी। उसे वक्तन फ़क्तन ये फरीज़ा अंजाम दे रही थी, मगर अब्बू का जवाब वही होता था। तौफीक भाई ने अभी अब्बू को समझाने की हतमी मकदूर कोशिश की थी। मैं मियाँ तुम्हें बहन बहुत भारी पड़ रही है ना, मगर मैं काफ़ी हूँ अपनी बेटी के लिए। तुम्हें फ़िक्रमंद होने की कतई ज़रूरत नहीं। अब्बू के जवाब के बाद उनके पास खामोशी के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। कहना तो नहीं चाहिए, मगर ताया जान बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये तौहीद था जो कभी किसी टेंशन परेशानी को खातिर में नहीं लाता था, मगर उसकी संजीदगी ज़ाहिर कर रही थी कि मामला गड़बड़ है। वैसे क्या ख्याल है, शाम खालू को आकर माफ़ी मांग लेंगे? अबीरा के दिल में सवाल में ख्वाहिश पोशीदा थी। पता नहीं यार, लेकिन मुझसे भाई के बाहर जाने से पहले मामला सुलझ जाना चाहिए, वरना बहुत मसला हो जाएगा। आहिस्ता बोलो, अंजा सो रही है, वैसे भी बहुत टेंशन है आजकल। बीरा ने उसे टोका। अंजा ने धीरे से आंखें खोलकर उन्हें देखा, फिर बिना तरदीद की आंखें मौंद ली। इसलिए में तासीर अंदर दाखिल हुआ था। अंजा है यहाँ? उसने अंदर झाँकते हुए पूछा। हाँ सो रही है, जवाब तौहीद ने दिया था। आ जाओ यार, तहसीन ने गर्दन मोड़ के किसी को मारा था। मुझसा भाई? अबीरा की हैरत भरी आवाज़ पर उनजा ने एकदम आंखें खोली। भारी भूख प्यास सब बुढ़ चुकी है, और तुम्हारी बहन मज़े से सो रही। उसने मुस्कुराती निगाह अंजा पर डालकर अबीरा को मुखातिब किया। अबीरा जवाबन मुस्कुरा भी न सकी। सब क्या हो गया मुझसा भाई? रोहांसी सब ठीक हो जाएगा अबीरा, बस तुम दुआ करो। उसे तसल्ली देते हुए कुर्सी घसीट कर बैठ गए। खुदा करे सब ठीक हो जाए, लेकिन आप यहीं साथ अपनी बेगम को सो जाए, कल से बिस्तर संभालने पड़ी है। अबीरा के कहने पर उसने मुस्कुराते हुए अंजा को देखा, जो दुपट्टा दुस्त करते हुए धीरे से उठ बैठी। तो तुम चाय बनाओ अबीरा, मैं बिस्कुट और निम्को ले आता हूँ। तो ईद कहते हुए उठ खड़ा हुआ। अबीरा सर हिलाते उसके पीछे बाहर निकल आई। चाचा जान बंटी को टहलाने बाहर गए थे, आते ही होगा। तुम इनकी आमद से पहले अपना काम निपटाओ। तासीर भी मुर्जा का खाना थपथपाते हुए उठा। तो मुर्जा कुछ लम्हों को खामोशी से अंजा को तकता रहा। परसों मेरी फ्लाइट है अंजा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो उससे मुखातिब हुआ था। मुझे खतरा तो था कि जिंदगी में कभी ना कभी खालू जान अब्बू के ताल्लुकात हमारे रिश्ते पर असरअंदाज हो सकते हैं, मगर ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा इसका अंदाजा नहीं था मुझे। वो की मुस्कुराहट लबों पर लाते हुए बोला। खैर, मामले ने जो भी रुख इख्तियार किया, अभी भी इसे सुलझाना हमारे इख्तियार में। मुझे मालूम है खाला
और खाला तुम्हें घर बेचने के हक में नहीं है, मगर तुम्हें इस वक्त स्टैंड लेना होगा। अंजा तमहीद बांध रहा था, उसने नासमझी के आलम में मुर्चा को देखा। चलो मैं तुम्हें लेने आया, लेकिन लेकिन वेकिन नहीं, बात समझने की कोशिश करो, हो सकता है फिलहाल खाला खालू तुमसे नाराज हो जाए, मगर थोड़ा वक्त गुजरने दो, सब ठीक हो जाएगा। वो धीमे लहजे में समझा रहा था, मैं परसों जा रहा हूँ, अगर मेरे पास वक्त होता तो शायद मैं तुम्हें इस तरीके से अपने साथ जाने पर मजबूर ना करता, मामला ठंडा होने तक इंतजार कर लेता मैं। लेकिन अक्सर मसला तो यही है कि पास वक्त नहीं है तुम्हें अभी, और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। 2-4 दिन गुजर कर अम्मी के साथ वापस आ जाना, फिर तुम्हारी मर्जी होगी। 1.5 या 2 महीने यहाँ गुजार लेना या वहाँ, इतने में तुम्हारे कागजात भी मुकम्मल हो जाएंगे। वो धीरे धीरे उसे समझा रहा था, इसे शाम खालू को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उसने रोहानसी होकर शिकवा किया, मानता उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मगर शायद उन्हें अंदाजा ही ना हुआ कि उनके बजाय हंसी मजाक आराम से अंदाज में की जाने वाली बात से इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। खैर, मेरा मकसद उन्हें बरी-ज़ुमा करार देना नहीं है, बगैर सोचे समझने बोलना बोलना उनकी आदत बन चुकी है। मगर मसला ये है कि अब इस बात को उन्होंने भी नाक का मसला बना लिया, और खालू जान ने भी मुर्चा के लहजे से परेशानी झलक रही थी। इसी लम्हे अम्मी अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम खाला। मुर्चा ने उठकर सलाम किया। वालेकुम सलाम। ख्याल आ गया खाला का? अम्मी का लहजा तंजिया था। मैं बस आ ही रहा था। वो ज़रा शर्मिंदा, खालू जान कहाँ है, मैं उन्हें भी सलाम कर लूँ? अरे आ रहे हैं तुम्हारे खालू जान, बैठो तुम। अम्मी संजीदगी से कहकर उधर ही बैठ गई। ज़रा देर बाद अब्बू भी अंदर आए। नहायत संजीदगी से सलाम दुआ का तबादला हुआ, फिर गहरी खामोशी छा गई। हाँ मियाँ कहो, कैसे आना हुआ? थोड़ी देर बाद अब्बू ने सर्द लहजे में दरियाफ्त किया, परसों मेरी फ़्लाइट है खालू जान। उसने धीमे लहजे में बात शुरू की। अब्बू ने सिर्फ हंगारा भरा, मैं अंजा को लेने आया हूँ। हालांकि मैंने आपा को बता दिया था, अंजा सिर्फ इस सूरत में जाएगी जब एहतिशाम यहाँ आकर अपनी बात की वजाहत देंगे। अब्बू ने अपनी दानिश में माजरत की जगह वजाहत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बहुत नरमी बरती थी। प्लीज़ खालू जान, आप तो जानते हैं अब्बू की आदत को, पहले तो आने से तो मुतल्लिक सोच भी लेते, मगर अब जब यहाँ के लोगों ने वहाँ जाकर आपसे कुछ बातें मनसूब करके बताई, तब से वो भी शदीद गुस्से में, वो कभी नहीं आएंगे। मुर्चा के लहजे में बेचारगी दर आई। हाँ तो कोई गलत बात तो नहीं की मैंने, अगर वो अपनी हरदर्मी का पक्का है तो मुझे भी अपनी इज्जत अजीज़ा भारी नहीं है? हमारी बेटी हमारे ऊपर, जाकर बता दो अपने बाप को। अब्बू भड़क उठे थे। खाला आप ही समझाए खालू को। उसने मदद तलब निगाहों से फरत बेगम को देखा। ये क्या समझाएगी इसके कहने सुनने ने तो मेरी मत मार दी थी। 2-3 अच्छे रिश्ते आ रहे थे जाके, मैं तो उनके हक में नहीं था कि मैं तो इस हक में नहीं था कि तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी करूँ। इत्तेशाम की खसलत का अंदाजा था मुझे। अब्बू शदीद इश्तियाल में थे। आइए, आपको पहले सोचना चाहिए था खालू जान, इनकार करना आपका हक था, मगर आपने वो हक इस्तेमाल नहीं किया। अब आप शरई और कानूनी तौर पे इंजा पर कोई हक नहीं रखते। इंजा मेरी बीवी है, मैं उसे लेने आया हूँ। खाला कहती हैं कि मुर्तज़ा का मिजाज बहुत गर्म है, शायद वो ठीक ही कहती हैं। इंजा ने बेबसी से पहले बाप और फिर शौहर को देखा। मियाँ हुकूक व फ़राइज़ का सबक किसी और को पढ़ाना इंजा की मर्जी के बगैर तुम उसे यहाँ से हरगिज़ नहीं ले जा सकते। बेफिक्र है, मैं इंजा को उसकी मर्जी से ही लेकर जा रहा हूँ। चलो इंजा जल्दी से तैयार हो जाओ, उसने सर्द अंदाज में उन्हें जवाब देते हुए मुखातिब किया, तो वो भक्का भक्का उसकी सूरत देखने लगी। मेरी बेटी को प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं, तुम उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। प्रेशराइज़ मैं नहीं, आप कर रहे हैं। अंजा अपनी रज़ामंदी तो खुशी से मेरे साथ जा रही है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अंजा शौक से जाए, मगर ये जहन में रख के फिर मेरे जीते जी इस घर में दोबारा कदम नहीं रख पाएगी। अब्बू दो टोक अंदाज में कहते हुए खड़े हो गए। चलो अंजा। मुझसे भी उठ खड़ा हुआ, बहुत पुरयकीन अंदाज में उसे पुकारा था। वो खाली निगाहों से उसे तकने लगी। चले जाओ मियाँ, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ अपनी बेटी को। अब्बू का लहजा इस्तेहज़ाइया था। अंजा, उसने दोबारा उसे पुकारा। वो बिना जवाब दिए घुटनों में सर दिए सिसकियाँ भरने लगी। चंद लम्हे तक मुर्चा ने उसके सर उठाने का इंतजार किया, फिर लंबे लंबे ढक भर तक कमरे से बाहर निकल गया। आप लोग कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, कैसे माँ बाप हैं आप? आपको कुछ अंदाज़ा है कि आप लोगों की ज़िद का क्या नतीजे निकल सकते हैं? बीरा पिछले 15 मिनट से अपने माँ बाप के साथ बहस कर, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे माँ बाप हैं आप? कुछ अंदाज़ा है कि आप लोगों की ज़िद के क्या नतीजे निकल सकते हैं? ये वीरा थी जो पिछले 15 मिनट से अम्मी के साथ उलझ रही थी। और तुम क्यों रो रही हो? मुर्तज़ा भाई आए तो थे तुम्हें लेने, क्यों नहीं चली गई थी तुम उनके साथ? तोपा का रुख अब सिसकियाँ भरती अंजा की तरफ हो गया था। अच्छा छोड़ो, क्यों परेशान कर रही हो अंजा को? भाभी ने उसे टोका। नहीं भाभी, अम्मी अब्बू ने बहुत ज्यादती की है मुर्तज़ा भाई के साथ। खाला आई तो उन्हें मायूस लौटाया। मुर्तज़ा भाई आए इस बात का अल्लाह का मसला बनाए बगैर और दोबारा अंजा को लेने आए। इसके बावजूद एहतिशाम भाई को आना चाहिए था। सारी बरादरी में नाक कटवा दी उन्होंने हमारी। अम्मी ने तेजी से बीरा की बात काटी। खुदा के लिए बस करें अम्मी, आपको भी पता है कि खालू का यहाँ माफ़ी मांगने आना एक नामुमकिन काम है। ऐसी शर्त बांध कर आपका क्या ख्याल है अंजा का घर बस जाएगा? मुझे क्या कह रही हो? अपने बाप के मिजाज का जैसे तुम्हें इल्म नहीं। अगर इस मौका पर साथ ना देती तो ज़िंदगी भर मुझे माफ़ ना करती, और मेरी हिम्मत अब ख़त्म हो गई है। तुम्हारे बाप की बातें बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रहा मुझ में।
अम्मी जैसे फट पड़ी थी, फिर उन पर टाँग पर रख कर रोने लगी। सारी ज़िंदगी अब्बू की बात से लड़ने की हिम्मत जवान रही, अब इस मौका पर हिम्मत टूट गई। बीरा अब भी बड़बड़ा रही थी, खुदा के लिए चुप हो जाओ बीरा, अंजा चीखी। अम्मी प्लीज़ रोए मत, आपका और अब्बू का कोई दोष नहीं, ये सब मेरी किस्मत में ही लिखा था। उसने अम्मी के कांधे पर सर रखते हुए कहा। बीरा अभी भी कुछ बड़बड़ा रही थी, उसकी बड़बड़ाहट से बचने के लिए कान बंद करना तो इख्तियार में ना था। हाँ, आंखें मौंद सकती थी, सो मौंद ली और आंखें बंद करते ही दो गरम गरम आंसू गालों पर फिसल गए। हाय हाय, अभी तो बच्ची की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा, यूं घर आकर बैठ गई बरामदे में बिछे तख्त पर। बंटी तो को थपक थपक कर सुला रही थी जब अम्मी के कमरे से बाहर निकलती। दो खवातीन में से एक ने तबसरा किया, अल्लाह जाने कौन थी वो, सुबह से शाम तक रिश्तेदार खवातीन का तांता ही बंधा रहता है। सारे अफसोस करने के बाद कुरेद कुरेद कर बातें पूछी जाती। अक्सरियत इनकी होती जो यहाँ से सुनगुन लेने के बाद खाला के घर का रुख करती। सो इधर से उधर बातों खबरों की दो तरफा ट्रैफिक जारी हो सारी थी। अब तो जाने कब ये मसला हल होगा। मुर्तज़ा तो चला गया, सुना है साल डेढ़ साल से पहले वापस नहीं आएगा। दूसरी खातून ने साथ चलते हुए सरगोशी की। मुर्तज़ा चला गया, इन खवातीन के जाने के बाद कितनी देर तक ये फिक्रा कानों में गूंजता रहा। हालांकि ये इंकशाफ नहीं था, मुर्तज़ा ने तो जाना ही था, ये तो तयशुदा बात थी। फिर भी दिल में मोहम सी आस डेरा जमाए बैठी थी कि मगर अब यूं लग रहा था जैसे किसी ने दिल मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। कितनी देर तक वो सर झुकाए बैठी रही। अंजा भाभी जाने कब आई थी, खाना खा लो गुड़िया, उन्होंने मोहब्बत से मुखातिब किया तो वो चुपचाप उठ गई। तुम्हें पता है अंजा, मुझे तुमसे मोहब्बत कब हुई? रात को तकिए पर सर रखते हुए कोई सरगोशी में पूछता। डेढ़ दो दिन की रफाकत का और ये ना ख़त्म होने वाली बातें, करवटें बदलते बदलते बदन दुखने लगता। बहुत पहले तुम और अबिया हमारे घर आए हुए थे, तुम छोटी सी थी, हम सब सहन में खेल रहे थे। अम्मी अबू बरामदे में बैठे थे, मैं बरामदे के पास से गुजरा तो अम्मी हंसते हुए कह रही थी, मैं तो इंजा को ही अपने मुर्तज़ा की दुल्हन बनाऊंगी। अबू भी हंस पड़े। बात आई गई होगी मगर मेरे जहन से वो जुमला चिपक कर रह गया। वक्त गुजरता रहा बीरा, तासीर तो ही सबसे सभी से मेरी खूब बेतकल्फ़ी थी। वहाँ तुम थी जिसके साथ मैं बेतकल्फ़ी से बातचीत नहीं कर पाता था। भाई भाई समझा करो ना, ना दिल में चोट था। हाँ, मौका पाकर तुम्हें देखता, खूब देखता, बल्कि सच तो ये है मैं जाता ही तुम्हें देखने के लिए था। बड़ी बड़ी रोशन आंखों वाली मेरी महबूबा, जिसका चेहरा दुनिया भर की लड़कियों से ज़्यादा हसीन था, बहुत मासूम थी, हर वक्त बौखलाई हुई रहती थी। मैं उसकी बौखलाहट देखने के लिए उस पर मजीद रौब जमाता। फिर जब मंगनी हुई तो इस लड़की की बौखलाहट में इजाफा हुई होता चला गया। तो ही कहता था उसे यकीन नहीं आता कि ये रिश्ता मुर्जा भाई की पसंद से हुआ है। तो मेरी जगह कोई और लड़की होती तो उसे भी यकीन ना आता। ऐसे हलाकू खान तो लगते थे आप। अच्छा, अब कैसा लगता हूँ? वो शरारती हुआ। क्या हुआ अंजा, नींद नहीं आ रही? अबीरा की आवाज़ उसे माजी से हाल में ले आई। सो रही हूँ बीरा, उसने धीरे से कहकर करवट बदल ली। लो भला बताओ कैसी माँ है आजकल की, छठा भर का बच्चा नहीं संभाल सकती? अरे मैं तो कहती हूँ अभी उम्र ही क्या है बेटी की, इतनी सी उम्र में बच्चे पढ़ाई का बोझ उठाने लादने की भी कोई तुक है भला? आज अबीरा और भाभी बंटी को स्कूल दाखिल कराने जा रही थी और अम्मी मुसलसल बड़बड़ा रही थी। पहली बात तो ये कि अम्मी आपका कोई पोता कोई बेचारा नहीं, अच्छा खासा शैतान है, फिर उसकी कोई पढ़ाई का बोझ डालने नहीं जा रहे हम लोग। अभी सिर्फ प्ले ग्रुप में एडमिशन दिलवाएंगे, 2-4 घंटे खेल कूल में गुजार कर वापस आ जाया करेगा। अम्मी को चुप कराने का फरीज़ा हस्बे मामूल अबीरा को सर अंजाम देना पड़ा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया अबीरा? मुझसे पूछने बगैर तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, इतना बड़ा फैसला अंजा। और रही बात तुमसे पूछने की, कितना बड़ा फैसला अंजा। और रही बात तुमसे पूछने की, आज तक तुमने किसी से पूछकर कोई फैसला लिया है? हर किसी की बात तो चुपचाप मानती चली आई हो, मेरी भी मान लो, क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तंजिया लहजे में बोली थी। प्लीज़ अबीरा, मुझसे यूँ बात ना करो। उसे सकुटे, आई एम सॉरी। अंजा उनके गले में बाहें डालते हुए खुद भी रो पड़ी। मुझे गुस्सा आता है तुम पर, मुझे लगता है अपनी इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। कुदरत ने फैसला करने का इख्तियार तुम्हारे हाथ में दिया था, तुमने मौका गंवा दिया। सब कुछ ठीक हो जाता इंसान अगर तुम उस रोज़ फुर्सत है भाई के साथ चली जाती। इंसान ने हमेशा की तरह इस बार बीरा की बात पर कोई तबसरा नहीं किया था। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ अगले हफ्ते से स्कूल ज्वाइन कर रही हो ना? चंद लम्हों बाद खुद पर काबू पाते हुए बीरा ने फिर पूछा। लेकिन बीरा वो बेबसी से देख कर रह गई। लेकिन कुछ नहीं अंजा, तासीर के दोस्त की बड़ी बहन का स्कूल है, उन्होंने मुझे जॉब की ऑफ़र की। मैं तो पढ़ाई का बहाना बनाते हुए मैंने कर ली। लेकिन फिर तुम्हारा ख्याल आया, वैसे भी तुम सारा दिन घर में फारिग ही रहती हो। बस मैंने तुम्हारा नाम ले लिया है। बिलीव मी, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा बच्चों को पढ़ा कर। तुम्हारे साथ बंटी भी खुशी खुशी चला जाया करेगा। अबिया के पास उसे राज़ी करने के लिए 101 दलीलें थी।
उसे हार मानना ही पड़ी। वो जानती थी ये सब जतन उसको ध्यान बटाने के लिए किए जा रहे हैं। बीरा भाभी तासीर तो ही जाने किसका मशवरा था। उसने बेदिली से मशवरा मान तो लिया, मगर चंद दिन बाद अंदाज़ा हुआ कि मशवरा मानकर अच्छा ही किया। छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ वक्त गुजरने का पता न चलता, उनकी शरारतें देखना, झगड़े निपटाना, स्कूल में गुजारने के लिए चंद घंटों की तरह उसका दिमाग में बरपा तलातम खेजी खेजी कुछ मान पड़ जाती है। सबसे बड़ी बात वह वक्त से रखने लगा था। अम्मी और अब्बू के ताल्लुकात एक बार फिर कशीदा हो गए थे। 2 माह पहले तक जिस मामले में वो अब्बू के मौक़िफ़ की पुरज़ोर हामी थी, अब उन्हें अब्बू की संगीन गलती का एहसास दिला रहा था। पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, कैसे कटेगी? अगर मंगनी हुई होती तो और बात थी, तोड़-ताड़ के किसी और जगह शादी कर देते। अब बिठाए रखेंगे बेटी को हमेशा के लिए। दूसरी तरफ एहतशाम भाई हैं, अगर मानना होता तो अब तक मान चुके होते। तो फिर तुम क्या चाहती हो? हाथ पकड़ के बेटी का इस कमज़ोर इंसान के घर छोड़ आओ? अब्बू हस्बे तवक्का भड़क उठे थे। बेचारी आपा ने माफ़ी माँग ली, मुर्जा चला आया। और क्या चाहते थे आप? अब अम्मी को बाहर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। देखो, मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, मुझे अपनी इज़्ज़त से बढ़कर कुछ प्यारा नहीं है। यही तो रोना है कि आपको अपनी इज़्ज़त से बढ़कर कुछ प्यारा ही नहीं, हत्ता कि अपनी औलाद की खुशियाँ भी नहीं। ज़रा देखिए क्या हालत हो गई है, इतने से दिनों में मेरी बेटी की कुम्हला कर रह गई है। अम्मी बोल रही थी और ये सोच रही थी कि अगर कुछ अरसे पहले अम्मी ये स्टैंड ले लेती, कम से कम इतनी हिम्मत दे देती, तो वो खुद से कोई फ़ैसला कर लेती, तो शायद इसने बल्कि झपक कर आँसू निकलते आँखों से निकलते आँसुओं को रोकना चाहा था। वो तो लड़के वाले हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उन्हें, चाहे सारी ज़िंदगी अपनी बेटी को बिठा कर रखे और अल्लाह ही जाने कब वो वापस आएगा, या फिर आएगा भी कि नहीं। वहाँ जाकर तो अच्छे-अच्छों का ईमान ख़राब हो जाता है, फिर यहाँ के हालात भी तो कोई कदम उठाने पर मजबूर कर सकते हैं। अम्मी के अंदेशे उसका दिल दहलाने लगे। क्यों बैठेगी सारी ज़िंदगी मेरी बेटी उसके नाम पर? अगर लेने नहीं आया तो मैं भी मामला लटका नहीं रहने दूँगा, सारे ख़ानदान को इकट्ठा करूँगा, मामला आरिया पार होगा। अगर लेने नहीं आएगा तो उसने हैरत से आँखें फाड़कर बाप को देखा। वो मुझे लेने आया था अब्बू। उसने लब खोलना चाहे मगर नाकाम रही। वक़्त का काम था गुज़रना, सो वो गुज़र रहा था। वो रिश्तेदार जो पहले हर दूसरे दिन आकर इज़हार हमदर्दी करते थे, अब उनकी आमद-ओ-रफ़्त का सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो चुका था। इस कहानी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए सभी ने अपना हिस्सा बक़द्रे ज़रूरत डाला था। अब इस किस्से में किसी के लिए कोई दिलचस्पी का अंसर बाकी न रहा था। मुर्तज़ा समुंदर पार बैठा था। हंज़ा अपने घर पहुँच गई थी। वही अब्बू का मौक़िफ़, वही एहतशाम खालू की हठधर्मी। दोनों घरानों में आना-जाना तो पहले ही ख़त्म था। मुश्तरका रिश्तेदारों के ज़रिए ख़बरें पहुँच जाती थी, तो वो सिलसिला भी आज कल मुनक़ता था। हमारी हंज़ा की खुशियों को किसी की नज़र लग गई है। कुदसिया चची अक्सर उसे देखकर आपदीदा हो जाती। फ़िक्र ना करो बेटे, अल्लाह सब ठीक करेगा। बहुत दिल से वो उसे दुआ देती है। अगर ये चंद मुख़लिस रिश्तेदार उसके पास ना होते तो ज़िंदगी की कठिनाइयों को झेलना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता। फिर इन्हीं दिनों अब्बू ने वीरा और तसीर की शादी का शोशा छोड़ दिया। अब तसीर को अच्छी जॉब मिल गई है। फिर कब तक शादी का इरादा है? नाश्ते के दौरान के वक्त उन्होंने अचानक कुदसिया चाची को मुखातिब किया तो दस्तरखान के गिर्द बैठे सब नफूस हक्का बक्का रह गए। हैं भाई, अल्लाह पाक वो मुबारक घड़ी भी लाएगा। मगर यूँ इस तरह कुदसिया चाची ने हकलाकर बात अधूरी छोड़ दी। मैं तो सोच रहा हूँ अब इस नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। क्या सोच है? अब अम्मी से राय मांगी थी, कैसी बातें करते हैं आप? बड़ी बेटी घर बैठी है और आप सारी दुनिया को फिर तमाशा दिखाने के लिए इकट्ठा करने का सोच रहे हैं। अम्मी ने चिढ़कर कहा, एक तो तुम्हारी मंतक मेरी समझ से बाहर है। मैं चाहता हूँ सारी ज़िंदगी दुनिया इकट्ठी हो और देखे किस धूमधाम से शादी की है हमने। अबीरा की हंसा की बारी तो इसके मुतालबे से हमारे हाथ बांध दिए थे। दुनिया अब देखेगी कि शादी ऐसे होती है, हर चीज़ शामिल होगी अबीरा की जहेज़ में। इस बार अब्बू ने दिल की बात बताई, लेकिन भाई तसीर तो कहता है वो जहेज़ के नाम पर कुछ नहीं लेगा। कुदसिया चची ने डरते-डरते तसीर के मौक़िफ़ से आगाह किए, दुनिया भर से नौके दामाद क्या मेरी ही किस्मत में रह गए? अब्बू फ़ौरन तैश में आ गए थे। तहसीर सर झुकाए बड़ी महबत से नाश्ता कर रहा था। बहरहाल मैं किसी की नहीं सुनूँगा। ख़ानदान बरादरी में मेरी भी कोई इज़्ज़त है। अबीरा की शादी अब्बू प्लीज़। अबीरा ने उन्हें दरमियान में ही टोक दिया। मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, फ़िलहाल मेरी शादी का इशू मत उठाइए। मैं यकसुई से पढ़ना चाहती हूँ। उसने दो टोक अंदाज़ इख्तियार किया। सर झुकाए बैठे तहसीर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अब्बू चुप हो गए, मगर नाराज़गी उनके चेहरे पर से हवीदा थी। बस इससे ज़रा सी ज़्यादा हिम्मत तुम्हें दिखानी थी हंज़ा बीबी। तो ईद ने उसके कान में घुसकर सरगोशी की थी। एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई थी। हंसा, तुम किसी मिसेस काजिम को जानती हो? असर की नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी जब भाभी ने आकर पूछा। जी, हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं। क्यों? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। वो अपनी बहन के साथ आई है, मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है, भाभी बताकर चली गई। वो दिल ही दिल में मिसेस काजिम की अचानक आमद पर हैरान तो हुई थी, फिर बालों
پھر بالوں میں برش کر کے خود بھی ڈرائنگ روم کا رخ کیا۔ امی اور چچی مہمانوں کے پاس بیٹھی تھی، وہ بھی سلام کر کے بیٹھ گئی کافی دیر تک۔ ادھر ادھر کی باتوں کے باوجود بھی ان کی آمد کا مقصد واضح نہ ہو سکا، مگر کچھ دیر بعد مسز اعظم کی بہن گویا ہوئی۔ دراصل میرا ایک ہی بھائی ہے ہمارا، عرصے سے لڑکی کی تلاش تھی لیکن کوئی جی کو نہ لگے۔ پھر باجی نے انزا کا ذکر کیا۔ یقین کرے جیسی لڑکی ہمیں چاہیے تھی، انزا کو دیکھ کر یوں لگا ہمارے من کی مراد پوری ہو گئی۔ اتنی اچھی مزاج کی، اتنی پیاری اور سلجھی ہوئی بچی، مسز اعظم کی بہن بول رہی تھی اور انزا ساکت بیٹھی رہ گئی۔ ابھی کچھ دن پہلے اسکول کے ایک فنکشن میں مسز اعظم نے اپنی 2 بہنوں سے بطور خاص اس کا تعارف کروایا تھا، اور اس تعارف کا مقصد اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ امی ابو کی وفات کے بعد ہمارا تو سارا میکا اکلوتے بھائی کے دم سے ہے، سب بہنوں میں چھوٹا ہے، بس یہی چاہا ہے کہ سادہ مزاج اور خلوصی لڑکی مل جائے۔ اب بولنے کی باری مسز کاظم کی تھی۔ امی اور قدسیہ چاچی اکا بکا دونوں خواتین کی شکل دیکھ رہی تھی، آپ کی آمد سر آنکھوں پر بین، مگر انزا آخر کر قدسیہ چچی نے ان کی بات کاٹی۔ نہیں نہیں، ہمیں جواب کی کوئی جلدی نہیں، آپ لوگ اچھی طرح سوچ لیں، آخر بیٹی کا معاملہ ہے، اچھی طرح جانچ پڑتال اور چھان بین کروا لیں۔ مگر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، انزا ہمارے گھر میں بہت خوش رکھے گی، ماشاءاللہ لاکھوں کا بزنس ہے میرے بھائی کا، اپنا گھر، گاڑی، اور پھر کوئی لمبی چوڑی سسرال کا جھمیلا بھی نہیں بھگتنا پڑے گا۔ انزا کو 4 ہی ہم بہنیں اور 4 اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، مسز کاظم نے مسکراتے ہوئے کہا، ساتھ ہی پیار بھری نظر انزا پر ڈالی جو سر جھکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ بات دراصل یہ ہے مسز کاظم، انزا کا نکاح ہو چکا ہے، اس بار امی نے دھیمی آواز میں بتایا تھا۔ ایک لمحے کو ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ اب ہکا بکا ہونے کی باری دونوں خواتین کی تھی۔ معاف کیجیے گا، ہمیں بالکل اندازہ نہ تھا، کچھ اکھلاتے ہوئے انہوں نے معذرت چاہی۔ دراصل انزا نے کبھی ذکر نہیں کیا، ورنہ خیر ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے مقدر میں یہ بچی ہوگی۔ مسز کاظم کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، پھر انہوں نے سلیقے سے گفتگو سمیٹی۔ اتنے میں ابیرہ کولڈ ڈرنک کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ یہ آپ کی مسز ابیرہ کے سلام کرنے پر مسز کاظم کی آنکھوں میں پھر سے چمک آئی تھی۔ انزا کی بہن ابیرہ میری بھتیجی بھی ہے اور خیر سے ہونے والی بہو بھی۔ اس بار قدسیہ چچی نے جواب دینے میں بالکل تاخیر نہ کی۔ انزا دھیرے سے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر چلی آئی۔ یہ نصیب ہے میری بیٹی کے، بیاہی ہوئی ہے، پھر بھی رشتے آ رہے ہیں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد گھر کا ماحول پھر سے مگدر ہو گیا۔ امی ٹھنڈی آہیں بھر کے انزا کے نصیب پر کفِ افسوس مل رہی تھی۔ وہ تو میں نے خوب سوچ سمجھ کے نکاح کا بتایا، اگر شادی اور رخصتی کا بتا دیتی تو کیا سوچتے وہ لوگ؟ ایسی ہوتی ہیں بیاہی لڑکیاں، سونی کلائیاں، سادہ کپڑے، نہ کوئی ہار سکھاؤ۔ اگر وہ شادی شدہ سمجھ کر آ بھی گئے تو اس کا کیا قصور؟ امی نے ایک اور ٹھنڈی آہ بھری۔ سب ٹھیک ہو جائے گا امی، آپ اتنا پریشان مت ہو۔ بھابھی نے انہیں دلاسا دیا۔ کیسے پریشان ہوں، میری تو سوچ کر نیندیں اڑ چکی ہیں۔ اگر صرف نکاح ہوتا تب بھی کوئی قدم اٹھانے کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا، مگر انہوں نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ سب جانتے تھے کہ اس مگر سے ان کی کیا مراد ہے، صرف 2 دن گزارے ہیں اس گھر میں، ٹھپا تو نہیں لگ گیا نا؟ لڑکی کی رخصتی ہو چکی ہے۔ کچھ دیر بعد امی کی بڑبڑاہٹیں دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ بھابھی اور قدسیہ چچی دونوں امی کو آنکھوں کے اشارے سے مزید اظہار خیال سے منع کر رہی تھی۔ انزا کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ امی ابھی بول ہی رہی تھی، مگر اس کے کانوں میں اب ان کے بجائے کسی اور کی آواز آ رہی تھی، میں جانتا ہوں انزا، یہ سب کچھ تمہارے لیے بہت اچانک ہوا ہے، تم یقیناً ذہنی طور پر تیار نہ تھی۔ میں چاہتا ہوں پہلے تم میرا اور میری محبت کا یقین کرو۔ وہ پہلا رشتہ جو ہمارے درمیان استوار ہونا چاہیے، وہ محبت، یقین اور اعتماد کا۔ شادی کے اگلا روز وہ مجھ سے کی کزن کی چھیڑ چھاڑ سے خوب پزل ہو رہی تھی۔ انہیں کیا بتاتی کہ اس کی سہاگ رات شوہر کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر سڑکوں کی خاک چھانتے ہوئے گزری ہے۔ رات کے آخری پہر وہ دونوں گھر لوٹے تھے اور اس بات کا شکر منا رہے تھے کہ سینٹ ایڈونچر کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو پائی۔ لیکن صبح جب مجھ سے کی شادی شدہ کزن نے اسے گھیر لیا تو ان کی بے باک اور شوخ باتوں کے جواب میں وہ واقعی بری طرح کنفیوز ہو گئی تھی۔ تب مرزا ہی اس کی مدد کو آیا تھا۔ بہت خوبی سے اس نے گفتگو کا رخ موڑ دیا تھا۔ پھر تنہائی پاتے ہی وہ محبت اور نرمی سے باتیں کر کے اس کی گھبراہٹ ختم کی تھی۔ اور ویسے بھی یار، 4 دن کا ساتھ اور پھر وہی 2.5 مہینے کی دوری۔ میں نہ اپنا ضبط آزمانا چاہتا ہوں، نہ تمہیں مشکل میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ گفتگو کے آخر میں وہ کچھ شرارتی تھا اور گہنزا جھیم کر مسکرا دی تھی۔ تم ابھی کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، ان کی عادت ہے بولتے رہنے کی۔ بھابھی کی آواز اسے ماضی سے حال میں لے آئی تھی۔ وہ جانے کب سے اسے گمسم بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ انزا نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر اپنی سوچوں کے نشانات کو مٹانا چاہا تھا۔ دیکھیے آصفہ بھابی، آپ کا تو وہاں آنا جانا ہے، ہمارا پیغام پہنچا دیں، یا تو احتشام بھائی معافی مانگ کر انزا کو لے جائیں یا بیٹے سے کہہ کر فیصلہ کروا دیں۔ ہم بھی یوں مجدار میں مزید نہیں لٹک سکتے۔ کافی دنوں بعد آصفہ آنٹی گن سننے لے آئی تھی۔ جب ابو نے انہیں 2 ٹوک انداز میں اپنا موقف بتایا، آنٹی نے حسب عادت نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ابو کی ساری گفتگو اپنے من پسند اضافے کے ساتھ احتشام صاحب کے گوش گزار کر دی۔ یہ حسرت و کیل اپنے دل سے نکال دے کہ میں اس سے معافی مانگوں گا۔ اپنی بیٹی کو اس نے خود گھر میں بٹھایا، ہم نے نہیں بھیجا۔ رہی بات فیصلے کی تو اتنی ہمت ہے اگر عقیل میں ہے تو جائے عدالت میں۔ خدا خالہ کے بہتے ہوئے آنسوؤں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے احتشام
साहब ने आसवा बेगम की मर्जी के मुताबिक जवाब दिया था और मामला अरसा दराज से सर्द पड़ा हुआ था। लोगों के लिए दोबारा दिलचस्पी इख्तियार कर गया। कितने मुनाफिक हैं ये सब लोग। बहुत हमदर्द बन के यहाँ ताया जान की हाँ में हाँ मिलाते हैं और वहाँ जाकर एहतशाम अंकल के मौक़िफ़ की तायद करते हैं तौहीद की। तो कभी कभार सख्त ताव चढ़ता था और वो बीरा बिल्कुल एक जैसे थे। अपने जज्बात के इजहार में किसी मसलहत को खातिर में न लाते थे। और तुम क्या सरसों के फूल की तरह जर्द होती जा रही हो, इतना मत सोचा करो रंजा, कभी सोचने से भी मसले हल होते हैं। तौहीद ने उसे भी टोका था। अब तुम सोचने पर भी पाबंदी लगा दो, सिर्फ सोचना ही तो मेरे इख्तियार में है। वो इस्तहज़ाइया अंदाज में हंसी थी। तौहीद तासुब से उसे देख कर रह गया। ताया जान आजकल मुख्तलिफ वकीलों से सलाह मशवरे कर रहे थे। तहसीर की बात पर अंजा ने बेयकीनी से उसे देखा। बेशक तो वकील साहब घर में मुख्तलिफ लोगों के सामने ये बात कर चुके थे। वो हमेशा इस बात को उनकी ऐसी धमकी समझती थी जिस पे अमल करने का उनका कोई इरादा नहीं था। मगर अब तहसीर की बात सुनकर दिल गोया रुक सा गया। मैंने तुम्हारे सामने ये बात इसलिए की है अंजा कि तुम सारी सूरत हाल से बाखबर रहो और फॉर गॉड सेक अब अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करो कि ताया जान की जज्बाती में ब्लैकमेलिंग में आकर कोई कदम ना उठा लेना। और अगर वो किसी कागज़ वगैरह पर दस्तखत करवाएं तो आंखें खोल कर देख लेना। तहसीर उसे समझा रहा था तो गोया नौबत यहाँ तक पहुँच गई। उसने बेयकीनी से देखा था। ज़िंदगी तुम्हारी है अंजा, और ज़िंदगी के मुतल्लिक फ़ैसले करने का इख्तियार भी तुम्हें है। तहसीर संजीदगी से बोला था। मेरा सर चकरा रहा है तहसीर, बस प्लीज़ चुप हो जाओ। वो दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गई। तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है तो भाभिया अबीरा को साथ लेकर डॉक्टर के पास क्यों नहीं चली जाती? मैं बुलाता हूँ भाभी को। तहसीर उसकी जर्द पड़ती रंगत देखकर फ़िक्रमंदी से बोला था। तुम चले जाओ तहसीर, मैं सिर्फ थकन महसूस कर रही हूँ, कुछ देर सोऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उसने तहसीर को टाल दिया। मगर बाहर अबीरा अम्मी को पकड़े यही बात कर रही थी। अम्मी हालत देखें आप उसकी, बैठे बैठे खोसी जाती है, रातों को जागती रहती है, नींद की गोली के बगैर उसे नींद नहीं आती। शदीद तरीन डिप्रेशन में मुब्तला है और आज से नहीं कई महीनों से। लेकिन अब मुझे लगता है उसकी बर्दाश्त का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। अब उसे कहीं कोई ऐसा वैसा कदम उठाने के बारे में सोचे भी मत। उसकी खामोशी का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उसे आप लोगों का किया गया हर फैसला कबूल है। मुझसे क्या कह रही हो? अपने बाप से कहो। अल्लाह जाने किन किन लोगों की बातों में आकर बेटी का घर खुद उजाड़ रहा है। अम्मी भी सख्त मतवशे नज़र आ रही थी। ठीक है, मैं खुद बात करूंगी अब्बू से। अबीरा फैसला कुछ अंदाज में बोली थी। बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला किया बेटे। वकील से सारे मामला तय पा गए हैं। उसने उम्मीद दिलाई है कि चंद महीनों पेशियों के बाद ही फैसला हमारे हक में हो जाएगा। लेकिन अब्बू अबीरा अबीरा जो बहुत कुछ कहने के इरादे से आई थी, इस दो टॉक जवाब पर हक्का बक्का रहेगी। उनके लहजे से साफ जाहिर था वो फैसला कर चुके हैं। उनसे पसपाई इसलिए पसपाई का कोई इरादा नहीं था। देखो बीरा, तुम अभी बच्ची हो, इन मामलात की बारीकियां तुम नहीं समझ सकती। इंजा को तो आपका ये फैसला कबूल नहीं है। उसने बेबसी से कहा, मैं जो भी कर रहा हूँ इंजा की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। तुम्हें क्या मालूम, जब उसकी बेरोकना आंखों में देखता हूँ तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मेरी बेटी पर शादीशुदा होने का लेबल लगने के बावजूद उसकी ज़िंदगी की कोई खुशी हासिल नहीं हो सकी। मैं चाहता हूँ उसे वो तमाम खुशियाँ मिले जिसकी वो हकदार है। अब्बू के लहजे की सच्चाई तो उसे तस्लीम थी, मगर मैं उन्हें और भी बहुत कुछ याद दिलाना चाहती थी। वो कहना चाहती थी कि उसकी अंजा की ज़िंदगी में ये सब खुशियाँ मिल सकती थी अगर चंद माह पहले वो ज़रा सी लचक दिखाकर एहतशाम खालू की एक मजाक में कही गई बात को दरगुजर कर देते। हमारा केस बहुत मजबूत बनेगा। तकरीबन 8 माह हो गए अंजा की शादी को, और इतना ही अरसा हो गया मुर्जा को गए हुए। ना उसने कोई राब्ता रखा, ना कोई नानफ का भेजा, जबकि शरीर और कानूनी तौर पे अंजा उसकी बीवी और जिम्मेदारी थी। यही बात जब मुर्जा भाई ने आपसे कही थी तो आप गुस्से में आ गए थे। उसने धीमे से लहजे में उन्हें याद दिलाया। उन्होंने अनसुनी कर दी। बहरहाल अब्बू, मैं अभी भी आपसे यही कहूँगी, अगर आखिरी फैसला करने से पहले एक बार अंजा की मर्जी भी मालूम कर ले। उसने मुल्तजिल अंदाज इख्तियार किया था। अंजा मेरी बहुत फरमाबरदार बेटी है। अब्बू के लहजे में अंजा के लिए मान था। बेरा बेबसी से उन्हें देख कर रह गई। मुर्तज़ा भाई वापस आ गए हैं। पता नहीं ये खबर थी या धमाका। रात को शहर भर की आवारागर्दी करके घर आने वाला आखिरी फर्द तो हीद होता था। अबीरा और अंजा के कमरे में झांक कर उसने जैसे किसी मामूल की बात से आगाह किया था। अबीरा ने बेयकीनी से उसे देखा। अंजा के हाथ से किताब छूट कर गिरी थी। 3 दिन से घर में अजीब सुकूत तारी था। मुर्तज़ा वापस आ गया था। अब कर आगे क्या होने वाला था? सब लोग एक दूसरे की आंखों में सवाल पढ़ते और नजरें चुरा लेते। 3 दिन हो गए तो मुर्तज़ा ने कोई राब्ता नहीं किया था। भाभी परेशानी से बोली। 3 दिन मुर्तज़ा भाई को राब्ता किए 8 माह गुजर गए। भाभी अबीरा चिढ़कर बोली। मस्जिद आ गई इस तमाम सूरत हाल से। मामले को अब एक तरफ हो जाना चाहिए। कितनी संगदिल बन रही हो बीरा तुम। गोया अंजा की ज़िंदगी ना हो, कोई टेस्ट मैच हो गया जिसका नतीजा निकल जाना चाहिए। जाने किसी के हक में ही सही। तौहीद ने बीरा को लताड़ दिया था। मेरा ये मतलब नहीं। तौहीद वो अफसुर्दगी से गोया हुई। तभी दरवाजे पर इतलाई घंटी बजी। तहसीर दरवाज़ा खोलने गया तो उसकी वापसी जिस शख्सियत के साथ हुई उसे देखकर सबको गोया एक लम्हे के लिए सांप सूंघ गया। ड्राइंग रूम में सभी मौजूद थे। अम्मी, अब्बू और तौफीक भाई, भाभी, कुदसिया चाची और तासीर। कई मिनटों की बेमायनी खामोशी को अम्मी ने तोड़ा था। उन्हें
उन्हें मुर्तज़ा से बहुत सी शिकायतें थी, क्या मिला मेरी बेटी को तुमसे शादी करके ज़िंदगी मजाक बन के रह गई। मर्दानगी से हालात का सामना करने के बजाय सात समुंदर पार जाकर बैठ गए। हम जानते एक पल कैसे गुजारा है हमने। मेरी अंजा शिद्दत जज्बात से उनकी आवाज़ रिंद गई, वो जुमला मुकम्मल ना कर सके। मुर्तज़ा लब पीछे नजरें झुकाए खामोशी से उन्हें सुन रहे थे। अम्मी खामोश होती तो अब्बू बोलना शुरू हो जाते, और जब अब्बू बोलते तो उन्हें चुप करवाना मुहाल होता। कुदसिया चाची, तौफीक भाई और भाभी तीनों ने बारी बारी उन्हें चुप करवाने की नाकाम कोशिश की। जिस लहजे में मुर्तज़ा से मुखातिब थे उसे बर्दाश्त करना किसी ठंडे 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 मिजाज के शख्स के लिए नामुमकिन था, मगर मुर्तज़ा खामोश था। हम बीच मझदार में मजीद नहीं लटक सकते मियाँ, जो भी फैसला करना है फौरी तौर पे करो। उन्होंने गुफ्तगू को का इख्तितामी फ़िक्रा सरदंदाज में कहा था, मैं भी मामले को मजीद तोल नहीं देना चाहता मैं फैसला करने ही आया हूँ। बहुत देर से खामोश बैठे मुर्तज़ा ने लब कुशाई की, तुम्हारी किस्मत का फैसला होने जा रहा है हमजा, खुदा के लिए रोक लो। मुर्तज़ा भाई को कह दो कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाएं। डाइनिंग रूम के पार्टीशन के पर्दों के दूसरी तरफ खड़ी बीरा ने अंजा की मिन्नत की थी, तुम्हारी बुज़दिली ने ही ये दिन दिखाया अंजा, अब वक्त गुजर गया तो सारी ज़िंदगी के लिए। अबीरा ने बात अधूरी छोड़ दी कर अंजा को देखा, उसके चेहरे से जैसे किसी ने लहू निचोड़ लिया। तुम ठीक तो हो अंजा? वो अपनी तकरीर भूल भाल कर परेशानी से उसे तकने लगी। ये क्या कह रहे हैं? ये फैसला? अंजा के लब फड़फड़ाए थे। ये तो कहते थे मुझसे मोहब्बत, फिर यूं मेरी ज़िंदगी। उसके मुंह से बेरब अल्फाज अदा हो रहे थे। अंजा बैठ जाओ। अबीरा उसकी हालत देखकर घबरा गई। मैं अम्मी को बुलाती हूँ। उसने अम्मी को आवाज़ देकर बुलाना चाहा, मगर इसी लम्हे अंजा चकरा कर गिर गई। अंजा अबीरा बौखला कर उस पर झुकी थी। लगता है होश आ रहा है। न जाने कितनी दूर से कोई बोला था। उसने भोजल पपोटों को हरकत देने की कोशिश की। सुबह भी थोड़ी देर को आंखें तो खोली थी, अब तो दवाइयों का असर है। बहरहाल अल्लाह ने करम कर दिया, पूरे 16 घंटे की बेहोशी थी। प्लीज़ आप लोग कमरे में से रश ख़त्म करें। तरह तरह की आवाज़ें कानों में पड़ रही थी, दिमाग जैसे बिल्कुल सुन था। बहुत दिक्कतों से उसने आंखें खोली, गिरदो पेश का जायज़ा लेने की कोशिश की। अंजा मेरी बच्ची। अम्मी उस पर झुक गई। अब कैसी तबीयत है बेटा? खाला का मुतफक्र चेहरा भी नजर आया। पानी उसके सूखे लबों अपने पर उसने सूखे लबों पर जुबान फेर कर तर्क ये करना चाहा। अम्मी ने सहारा देकर थोड़ा सा उठाया। खाला ने पानी का गिलास मुंह से लगाया। ज्यादा मत पिलाएं आपा, बस 2 घूंट। अब्बू भी करीब आए थे। उसने नज़र उठा के अब्बू को देखा और अब्बू के पहलू में खड़े खालू जान। मेरा ख्याल है डॉक्टर जैद से एक बार फिर पूछ लेना चाहिए, खालू जान ने अब्बू से कहा था। अब्बू ने इस बात में गर्दन हिलाई थी। ख्वाब, वहम या हकीकत? अब्बू और खालू को एक दूसरे से बातचीत करता देखकर उसने सोचना चाहा था, शायद तखय्युल। उसने फिर से आंखें मूंद ली। तुम्हें पता है लड़की अल्लाह मियाँ के पास जाते जाते वापस आई हो, बस समझ लो रूह परवास करने वाली थी। हम सब ने मिलकर उसकी टांग पकड़ ली। तौहीद उसके सराहने कुर्सी रखे बैठा था, पास ही बीरा बैठी थी, सेब की काशें काट कर खिला रही थी। क्या ड्रामाई सीन था। तुम तो आलमे मदहोशी में चली गई। बात की रदाद सुन लो बीरा से। तौहीद ने बड़ी सी काश अपने मुंह में डालते हुए इस्तफसार किया। एक फीकी सी मुस्कुराहट अंजा के लबों पर फैल गई। हम तो ड्राइंग रूम में बैठे ताया जान की गिन घर सुन रहे थे। इतने में पर्दे के पीछे से धड़ाम की आवाज़, एक खासा जोरदार धमाका था। फिर अबीरा बीबी की चीख सुनाई दी। एक सेकंड में सब दौड़ दौड़ कर डाइनिंग रूम में पहुंचे थे। वहाँ अबीरा बीबी तुम्हें तुम्हारे ऊपर झुकी अल्लाह जाने दिल की धड़कन चेक कर रही थी या सांस गिन रही थी। अब ये कोई बाकायदा डॉक्टर तो है नहीं। खुदा का करना ये हुआ इन्हें ना तो तुम्हारी धड़कन सुनाई दी और ना सांस आती दिखाई। उसने चीखो पुकार शुरू कर दी। अंजा मर गई, मेरी बहन मर गई। फिर अगली एंट्री मुर्तज़ा भाई की थी। अबीरा को पीछे हटाकर आगे बढ़े, नब्ज़ पकड़ी, सर उठाकर पास खड़े इंतहाई तशवीश ज़दा हाजरीन को देखा, फिर सर्द आवाज़ में सबको मुखातिब किया। अगर अंजा को कुछ हुआ तो मैं ना अपने वालिदैन को माफ़ करूँगा ना आप लोगों को। ये कहते ही उन्होंने तुम्हें बाजू में उठाकर तेज़ी से बाहर की तरफ लपके। पीछे पीछे तौफीक भाई, ताया, अब्बा और तसीर भी लपके। अब घर की मौजूद ख़वातीन को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे नातवान कंधों पे थी। ये बीरा बीबी जो बहुत बहादुर बनती है, इस दिन रोने और चीखने के रिकॉर्ड कायम कर दिए। ताई अम्मी के हवा से अलग जवाब दे गए, लेकिन इस सबसे अक्लमंदी का काम भाभी ने किया। खाला के घर फ़ोन किया। फिर यूं लगा कि जैसे सब लोग तुम्हारे नर्वस ब्रेकडाउन के ही इंतज़ार में बैठे थे। ऐसे दौड़े दौड़े चले आए जैसे कभी झगड़ा ही ना हुआ हो। बाय द वे कज़न, ये नर्वस ब्रेकडाउन तुम पहले नहीं करवा सकती थी? ख्वामखा इतने दिन की टेंशन बर्दाश्त की। तौहीद जब नॉन स्टॉप बोलने पर आता था तो उसे चुप करवाना मुहाल होता था। बीरा उसकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। अंजा के लबों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई और बेचारे मुर्तज़ा भाई। तौहीद ने एकदम लंबी सांस भरी। अंजा की मुस्कुराहट एक सेकंड में गायब हुई थी। इस लम्हे मुर्तज़ा भी अंदर दाखिल हुआ था। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली, मगर अगले ही पर अंजा ने आंखें मोद ली। मुर्तज़ा
کہ होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने मेडिसिन का शॉप पर अबीरा को पकड़ाया, साथ ही दवाओं के बारे में कुछ हिदायत भी दी थी। बैठे मुर्चा भाई, ये सेब खाएं। तौहीद ने कुर्सी उसके लिए खाली की। उसने जवाबन मुस्कुराकर नफ़ी में गर्दन हिलाई। चलो बीरा, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, अब अम्मी और खाला आने को तैयार है। वो बीरा के से मुखातिब, मुर्चा भाई मैं भी अंजा के पास ही रहूँगी, आप और तौहीद चले जाएँ। तौहीद अम्मी वगैरह को लेकर आएगा, आप तब तक अब घर पर रेस्ट कर ले। 3 दिन हो गए, आप बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाए, ख्वाम आप बीमार पड़ सकते हैं। खुदा न खास्ता बीमार पड़ गया तो बीरा के लहजे में उसके लिए फिक्रमंदी झलक रही थी। मैं ठीक हूँ भई, वो मुस्कुराए। इसलिए में उसके मोबाइल की घंटी बजी। वो तौहीद को आने का इशारा करके कमरे से बाहर चला गया। अब आंखें खोलो, चले गए हैं मुर्चा भाई, बिना नाराज़गी से बोली। उसने धीरे से आंखें खोली। जब से तुम्हें होश आया, 4 बार तुम्हारा मुर्चा भाई का आमना सामना हुआ। हर बार आंखें मौत कर तुम क्या साबित करना चाह रही हो? ना कलाम ना सलाम। अबीरा उससे खफा थी। कलाम और सलाम की गुंजाइश रहती है क्या? वो तल्ख हुई तो मुर्चा भाई से नाराज़ हो। बीरा ने हैरत से उसको देखा था। मैं क्यों होने लगी उनसे नाज? क्या रिश्ता है मेरा उनका? उसका लहजा इस्तेहज़ाइया था। तुम बीवी हो उनके? बीरा ने गोया उसकी उसकी मालूमात में इजाफा किया था। हाँ शायद, मगर इस रोज़ अगर मुझे नर्व ब्रेक ना होता तो इस वक्त इस नाम नेहाद रिश्ते का लेबल भी उतर चुका होता। तुमने सुना नहीं है बीरा, उस रोज़ वो फैसला करने आए थे। इस बार उसकी आवाज़ वाज़िया तौर पर कँपाई थी। माजी को छोड़ दो अंजा, जो कुछ हो गया वो नहीं होना चाहिए था। सब कुछ भुलाकर नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। नहीं भूल सकती है बीरा, मैं कुछ नहीं भूल सकती। उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। पहले मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया, फिर मुझे बिल्कुल तन्हा छोड़कर चले गए। मैं मानती हूँ वो मुझे लेने आए थे, लेकिन क्या उन्हें मेरी बुज़दिली और कम हिम्मती का अंदाज़ा नहीं था? फिर कितना अज़ियतनाक वक़्त गुज़ारा है मैंने। उन्होंने हर राब्ता, हर ताल्लुक तोड़ लिया। मैं कैसे वो अज़ियत भुला दूँ? बीरा ने उसे हैरत से देखा। वो पहली वाली इंसा तो किसी तो और ना लग रही थी। तुम्हें क्या पता उनसा कि जब तुम होश में नहीं नहीं आई थी तो मुर्ज़ा भाई की क्या हालत थी? अगर तुम देख लेती तो तुम्हारा हर शिकवा, हर शिकायत दम तोड़ देती। बीरा की समझ में नहीं आ रहा था वो मुर्जा की जानिब से उनसा का दिल कैसा साफ करे। अगर मैं मर जाती, मुझे होश ना आता तो क्या कर लेते तुम्हारे मुर्जा भाई? अब्बू का क्या रद्द में अमल होता मेरी मौत पर? और खालू वो क्या करते? सब लोगों ने अपनी अनाओं की भेंट चढ़ाना चाहा था मुझे, और वो तो मैं सख्त जान थी जो बच गई। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसी थी। अच्छा बस करो, खौफनाक बातें करना बंद कर दो। बीरा ने झुरझुरी लेते उसे टोका। और वाकई चुप सी होगी। रात का जाने कौन सा पहर था जब प्यास की शिद्दत से उसकी आंख खोली। जरा सी गर्दन मोड़कर उसने अम्मी या भाभी को पुकारना चाहा, मगर साइड वाले सोफे पर नीम दराज शख्स को देख के उसका दिल जैसे एकदम धड़कना भूल गया। आंखें मूंदे मुर्चा जाने कब से कमरे में वजूद थे। कमरे में फैली मद्दब सी रोशनी में उसका चेहरा कई दिनों की बेआरामी और थकन का आमाज था। उस लम्हे मुर्चा ने आंखें खोली थी। उसे अपनी जानिब तख्ता पाकर वो उसके करीब आया। अंजा ने सटपटाकर दोबारा आंखें मूंद ली। कुछ चाहिए अंजा? उन्होंने मुस्कुराहट छुपाते हुए पूछा। जवाब में वो कुछ ना बोली, मगर पलकों की लर्जिश बता रही थी क्या वो सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रही। मुर्चा कुर्सी घसीट कर बेड के करीब ले आए। मुझे पता है तुम जाग रहे हो आंखें बंद करके। कब तक फरार चाहोगी मुझसे? उनकी सरगोशी पर वो मजीद आंखें बंद न रख सकी। अम्मी कहाँ है? उसने आहिस्तगी से पूछा। शुक्र है तुमने ना बोलने की कसम तो तोड़ दी। मैं कब से मुंतजिर था कि तुम अम्मी कहाँ है? उसने मुर्तज़ा की बात काट कर धीरे से अपना सवाल फिर दोहराया था। खाला की तबीयत ठीक नहीं थी, तौफीक भाई उन्हें घर ले गए। क्या हुआ अम्मी को? वो परेशान हुई थी। कुछ नहीं, मामूली सा बुखार है। तुमने सबको थका दिया। अभी थकाया भी तो बहुत है ना। मैं खुद बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ प्लीज़। इस बार वो कदरे रुखाई से कहा। मुझे मालूम है तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो और ये नाराज़गी तुम्हारा हक भी है, मगर यार सफाई का एक मौका तो दो। मुर्ता इस बार कुछ बेबसी से बोला था। अंजला के आंसू गाल भिगोने लगे। मुर्ता ने बहुत नरमी से अपनी उंगलियों की पोरों से उसके आंसू जब्स किए थे। कोई हक नहीं रखते आप मुझ पर। इस रोज़ मुझसे अपना हर ताल्लुक तोड़ने आए थे आप? उसकी आवाज़ कब आई थी। तुमसे ताल्लुक तोड़ना होता तो मैं वहाँ समुंदर पार बैठकर भी तो तोड़ सकता था। यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी भला? तो क्यों आए थे? मैंने तो नहीं बुलाया था। वो चिढ़कर बोली। मुर्तज़ा ने मुस्कुराकर उसे देखा। ये हठधर्मी तो कभी भी अंजा की फितरत का हिस्सा नहीं रही थी। तुमने तो नहीं बुलाया, मगर मैं यहाँ के पल पल की सूरत हाल से बाखबर था। अपने ताल्लुक को बचाने की खातिर ही आया हूँ, और अब इस ताल्लुक को बचाने की खातिर ही वापस अपने अपने ताल्लुक को बचाने की खातिर ही गया था, और अब इस ताल्लुक को बचाने की खातिर ही वापस आया हूँ। अपने ताल्लुक को बचाने की खातिर ही अपनी नौकरी को तन से बाज ना आई थी। अगर नौकरी मेरे लिए इतनी अहम होती तो मैं यूँ रिज़ाइन ना देकर आ जाता। वो इस बार संजीदगी से बोला था। अंजा इस इंकशाफ पर हक्का बक्का रह गई। आपने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया? वो हैरत से पूछे बगैर ना रह सकी। बेफिक्र हो, भूखा नहीं मरने दूंगा। जॉब ही गई है, तालीम व तजर्बा तो नहीं गया। वो मुस्कुराया। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। वो खफीफ हुई। मेरा फिर क्या मतलब था? एक बेरोज़गार शख्स के साथ गुजारा कर लोगी? वो मुस्कुराहट छुपाते हुए संजीदगी से इस्तफसार कर रहा था। रिज़्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, वो सादगी से बोली।
और इस सादगी और भोलनपन पर मुर्तज़ा को बेसाख्ता प्यार आया था। सो तो है उसने संजीदगी से सर हिलाया, अलबत्ता आंखों में शरारत मौजूद थी। बस तुम कल अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाओ, फिर अपने घर चलेंगे, ठीक है ना? किस चालाकी से उसे मतलब की बात तक लाया। अनजाने ने घूर कर देखा, आप घर चलेंगे फिर छोटी सी बात पर मुझे मेरे घर छोड़कर दोबारा फरार हो जाएंगे। जी नहीं, अब मेरे अंदर किसी नई सूरत हाल से निपटने की बिल्कुल ताकत नहीं। यार पहली बात तो ये, तुम मेरे लिए हर बार फरार का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करो। तुम्हारा शौहर हूँ, कोई होशियारी मुजरिम नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि अब माशाल्लाह मेरी बीवी में बहुत हिम्मत है, बड़े बड़े तूफान का डटकर मुकाबला कर सकती। काश ये स्पिरिट में उसमें इस वक्त पैदा हो जाती तो मेरे और उसके दरमियान ये जुदाई के 8 माह तो ना होते। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया मुर्तज़ा। वो एकदम जाने क्या हुआ, वो फूट फूट कर रो दी। मानता हूँ मेरी जान, और माफ़ी भी मांगता हूँ, मगर प्लीज़ अब रोना बंद कर दो। उसके आंसू मुर्तज़ा को बेचैन कर रहे थे। आप हालात का सामना करने के लिए मुझे अकेला छोड़ गए। आपको अंदाज़ा है मेरी अज़ियत का? वो रोज़ जीती थी, रोज़ मरती थी। क्यों यकीन दिलाया था मुझे अपनी मोहब्बत होती तो यूँ जो भी कह रही हो कह लो, मगर मेरी मोहब्बत पे शक मत करना। मुझे लगता था अगर मैं यहाँ रहा तो हालात मज़ीद बिगड़ जाएँगे। खालू जान और अब्बू दोनों ही की ज़िद्दी तबीयत हमारे रिश्ते में दरार डाल सकती थी। अब्बू भी लोगों की बातों में बहुत जल्द आ जाते हैं और मुझ पर ये रिश्ता ख़त्म करने के लिए हर जायज़ नाजायज़ दबाव डाल सकते थे। ना अब्बू मेरी मिन्नत समाज से मान सकते थे, ना खालू। तुमने भी मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया था। फिर मैं क्या करता? मुझे तुम्हारी पोजीशन का भी अंदाज़ा था, तुम्हें प्रेशराइज़ करने का। मैं तुम्हें मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। सोचा भी ये था कि हो सकता है मेरे मंज़रनामे से गायब होने के बाद मामला आहिस्ता-आहिस्ता ठंडा पड़ जाए, हालात सुधर जाएँ। मगर मानता हूँ ये मेरी भूल थी, तासीर से राब्ता था मेरा। फिर जब उसने बताया कि हालात बिल्कुल काबू से बाहर होते जा रहे हैं और अब मुझे आ जाना चाहिए, तो आप आगे अंदर उसकी बात काट कर जुमला मुकम्मल किए और आने के बाद कहा, आप फ़ैसला करने आए हैं। वो उसे बख्शने के मूड में नहीं थी। हाँ, फ़ैसला ही करने आया था, तुम्हें अपने साथ ले जाने का फ़ैसला। खालू का इख्तिलाफ़ अब्बू से था और तुम्हें इस घर भेजना नहीं चाहते। मैंने फ़ैसला किया था तुम और मैं दोबारा अपने घर वालों को छोड़कर अलग घर में रहेंगे, और अब इन सबको अपनी गलती का अंदाज़ा हो जाएगा तब। और आपका ख़्याल था मैं आपके साथ चल पड़ूँगी। नहीं, मेरा हरगिज़ ये ख़्याल नहीं था तुम मेरे साथ चल पड़ोगी। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ही ले जाने आया था। मुर्तज़ा ने मुस्कुराते हुए बात मुकम्मल की। लेकिन खैर फिर तो आपने वो कारनामा सर अंजाम दिया कि मुझ समेत किसी को भी कुछ करने की ज़रूरत ना पड़ी। सब कुछ खुद ब खुद ठीक होता गया। यार तुम ये नर्वस ब्रेकडाउन पहले नहीं कर सकती। नाहक मुझे बेरोज़गार करवाया, तो फिर आपने एग्रीमेंट क्यों तोड़ा? वो शर्मिंदा हो गई। तो यार अपना मुल्क बुरा है क्या? वैसे एक और कंपनी ने भी ज़बरदस्त पैकेज के साथ जॉब ऑफ़र की है। इंशाल्लाह जल्दी जॉइन कर लूँगा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मेरी शराफ़त को बहुत आज़मा लिया तुमने। मुर्तज़ा ने उसका हाथ थाम कर लबों से लगाया था। मैं ठीक हूँ, उसकी पलकें झुक गई थी और नाराज़गी। मुर्तज़ा ने मुस्कुराते हुए इस्तफ़सार किया। वो चुप होगी। बहरहाल जो कुछ हुआ मुझे हमेशा इसका अफ़सोस रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ आइंदा ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम खुद को तन्हा नहीं पाओगी। अव्वल तो आइंदा अब्बू और खालू के इख्तिलाफ़ात हमारे रिश्ते पर कभी नज़रअंदाज नहीं होंगे। अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसी नौबत आई भी, तो मुर्तज़ा ने हंसते हुए बात अधूरी छोड़ दी। हमज़ा ने फ़ौरन सर उठा कर देखा, तो मैं अकेला फ़रार नहीं होऊँगा, बल्कि तुम्हें भी साथ ले जाऊँगा। उसने हंसते हुए जुमला मुकम्मल किया। हमज़ा के लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। मुर्तज़ा ने बहुत मोहब्बत और तमानियत से उसे मुस्कुराते हुए देखा था। मैं कोशिश करूँगा हमज़ा की ये मुस्कुराहट कभी तुम्हारे लबों से जुदा ना हो। उसने दिल ही दिल में खुद से अहद किया था। तुम्हें नींद आ रही है ना? अब सुकून से सो जा। बस आखिरी बात ये कि इस बात का यकीन रखना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू। हमज़ा बहुत आहिस्तगी से उसने हमज़ा के कान में सरगोशी की थी। मुझे भूख लग रही है। उसने एकदम अपनी भूख का इज़हार किया था। मुर्तज़ा अपने लबों पर आई मुस्कुराहट छुपा ना पाया था। अब हँसे तो मत। सोने से पहले मैंने दूध के साथ मेडिसिन ली थी। खुद ही बताएं, कभी दूध जूस या सूप से भी भूख मिटती है? बिल्कुल नहीं मिटती। उसने हंसते हुए तायीद की थी। फिर हंस क्यों रहे? वो खफा हुई। मैं हंस तो नहीं रहा, ये तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। इधर मैं रोमांटिक हुआ नहीं, उधर आपको भूख लगना शुरू। क्या बनेगा मेरा? वो हंसते हुए उठ खड़ा हुआ और मेज़ पर रखे लंच बॉक्स को खोलकर देखा। इसमें कुछ नहीं है। अगर अगर तुम हिम्मत करो तो आप फ्रूट बास्केट में से मुझे केला उठा दे प्लीज़। रात की इस पैर में आपके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ कर कहीं नहीं जा सकती। उसने बड़ी तेज़ी से इनकार किया। मुर्तज़ा अपना कहना रोक सा और फिर झीम कर मुस्कुरा दी। अच्छा फिर उठो, थोड़ा सा इंतज़ार करो, सुबह होने वाली है। सुबह हो गई है मुर्तज़ा, उसने धीरे से कहकर आंखें मोड़ ली। इसके साथ ही हमारा आज का नावल ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नावल बेहद अच्छा लगा होगा। जल्द ही मिलते हैं किसी बेहद अच्छे नावल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।